जी सर. Yes, good morning, namaskar, suprabhatam. And again, we are here with yet another leader from Kedla Group, and it is our privilege to welcome Pramod Rajput sir. And now I quickly handle to Abhinan sir for setting the background as well as opening remark. Over to Abhinan sir. Yeah, hi. Good morning, kids. Good morning to everybody. Hope you are all keeping safe. Bada majama છો. And I'm assuring you that you are going to meet a very energetic and dynamic leader from Kadila, Mr. P.K. Rajput. And I'll tell you about Mr. Rajput ji. Rajput ji has worked with our founder chairman, with MD sir, and he has moved out from a rung from a lower level MT to the highest position level. So it's worth listening to somebody who knows in and out of marketing, a pharma thing, a very great relationship builder. If you look at the doctors network which is building, is a great and amazing. And I will also now leave it to Rajput ji. And because he's a senior person in our marketing team, he's a great strategist and a very good product guy. So you must listen to him carefully, and it's an opportunity to listen to him. Thank you. Thank you, Abhinan sir. Despite his busy schedule and he is on the way to Gandhinagar, he has made it out for us to help us and be with us in the opening remark. Thank you, Abhinan sir. Okay, sir, as per our protocol, we invite one of our student to introduce you. So now over to Harsh Vyas from BTech Semester 5, School of Engineering. Harsh, you Yes, can ma'am. unmute yourself. Yeah. Good morning, dear sir, all faculty members and students. Thank you for attending this webinar. I am Harsh Vyas from 5th semester, Computer Science and Engineering. Today's topic of this webinar is challenges and opportunities in marketing and the way forward. So, in this webinar, we will know what is marketing, what are ups and downs in marketing, how to make a career as marketing professional. All these type of questions will be answered by our speaker, a result-oriented pharmaceutical sales and marketing professional with an enriching experience of over 38 years in pharmaceutical and healthcare sector, rich experience in handling chronic and acute therapy portfolios, currently having more than 4,000 patrons who are well connected, built MagnaStar as second largest division of Cadila Pharma Group, and the only vertical which was on target as month-on-month sales consistency and the highest growth than other verticals. And for that, in 2019, he was awarded as Champion of Champions. So I am not taking much time. On behalf of IU, let's welcome Senior Vice President of Sales and Marketing Vertical Head, Mr. Pramod Kumar Rathod, sir. Thank you, Harsh. Welcome, ma'am. He's one of our best students in School of Engineering, and that is the debut batch of our Industrial University. So, without Sir, much delay, before yes, you sir start, I would like to say something yes, sir. regarding sir. Please, sir. Uh, this is a series. First and foremost, my pains and sorrows are there with the students because ये नवरात्रि पहली ऐसे नवरात्रि उनके याद में ऐसी है जब लोग गरबा नहीं कर पा रहे हैं. तो गाइज आई एम विद यू. आप जितना सफर कर रहे हैं उतना हम भी सफर कर रहे हैं. हमारे घर में भी उतना ही दुख है. सो मैं इस दुख में बराबर आपके साथ में हूँ. भगवान जल्दी वो समय ठीक करेगा और हम लोग सब मिलकर दोबारा आपके कैंपस में आएंगे गरबा करने के लिए. ये हमारा आज से एश्योरेंस आप रख लीजिए. पहली बात. दूसरी बात, इस सेशन पे आते हैं. तो जो इस सेशन का ऑब्जेक्टिव था टर्निंग पॉइंट. टर्निंग पॉइंट मतलब यू आर गोइंग फ्रॉम कैंपस टू कॉर्पोरेट और यू आर प्रिपेयरिंग एंड एस्पायरिंग फ्रॉम कैंपस टू कॉर्पोरेट. उस समय आपको किसको सुनना चाहिए, राइट? किसकी बात फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सलाह बहुत सारे लोग आपको देंगे, बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे. तो हम ऐसे व्यक्ति की बातें सुने जिसने ये सब खुद देखा है, जिसने बहुत ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया है. 38 साल एक कंपनी में मतलब काम करना, वो भी आज के वूका वर्ल्ड में, इट सेल्फ स्पीक्स फॉर दैट पर्सन. सी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, बट इतना लंबा समय एक कंपनी में गुजारना, और वो कंपनी में जब इस तरह का वातावरण होता है, शायद आप कॉर्पोरेट जब जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कंपनी का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, कल्चर कैसा होता है.
उसके बाद वो सबके साथ रह के खुद को ग्रो करना और बहुत सारे और लोगों को ग्रो करना अपने साथ में। शायद राजपूत सर का सबसे बड़ा जो मैं उनका फैन हूँ या भगत हूँ इसी चीज का हूँ कि उनके अंडर में बहुत सारे लोग डेवलप हुए हैं। तो आज हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है कि हम उनको सुनने जा रहे हैं या उनकी बातें हम फॉलो करने जा रहे हैं जिन्होंने खुद बहुत सारे लोग डेवलप किए हैं। सो सर हमारी भक्ति स्वीकार करें सर। Thank you so much. Thank you. Sir Rajput sir, we are joined and connected with our deans, and I'll introduce to them later on Dr. A.P. Vyas. He's Dean School of Engineering, and he holds portfolio of registrar as well. Currently, Dr. Bharti Dave, she's Dean School of Science. So at the end of the session, perhaps they will also have reflect their understanding and their views also. So, sir, without delay, the floor is yours. The cloud is yours. Thank you so much. Once again, real thanks to all. And thank you, first of all, Pradeep ji, for making me a part of this thing. Thanks to Mr. Abhinandan. Mr. Abhinandan is a very good friend of mine. We are old Cadillians. And at the same time, Namrata madam, very happy to be a part. And my all the gratitude to Dr. A.P. Vyas and Bharti madam, as well as Dr. Sumi to be a part of this. And thanks for giving me a wonderful opportunity that I am going to talk to the young buddies जो कि अभी कॉलेज में हैं या कॉलेज से निकल करके आएंगे। तो इट इज ए वेरी गुड थिंग बिकॉज यही आगे का फ्यूचर है, यही आगे की जनरेशन है, यही आगे की जनरेशन हमें आगे इंडिया को लीड करेगी और इंडिया का नाम करेगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वॉट एवर माई लर्निंग इज देयर, वॉट एवर आई हैव लर्नड विद दिस ब्यूटिफुल ऑर्गेनाइजेशन वेयर आवर CMD, current CMD and the founder chairman, they started from the scratch. अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप एग्जाम्पल दो तो हम बोलते हैं कि घर में एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो ये फाउंडर चेयरमैन ने साइकिल से शुरू की और इतना बड़ा एम्पायर बनाया, तो इससे बड़ा आपको क्या एग्जाम्पल चाहिए, बाहर क्या जाते हैं। तो दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग विच आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव for this beautiful organization where I am working as a part of the organization and building it and ensuring it. So with this, I want to share my screen. So good morning to all, namaste to all, Kem Cho to all the Gujarati, my friends, Sat Sri Akal to all the Punjabi people, Assalamu Alaikum for all our Mohammedans friends. So welcome to the interactive session जो कि English में है, हिंदी और English में। So हम पहले सबसे पहले आज आपको जो बताते हैं कि ये क्या चीज है, इसमें क्या है, what is the next thing is there. So I'm just going to put the things, one second, just a minute. मेरा slide, one second. I'm just sharing, one second. वो slide का movement कहीं अटक गया है। Sir, actually it will take time. हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। Yeah. Fine. So on the auspicious occasion of Navratri, let me remind you कि ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है। तो थोड़ा हम हट करके बात करते हैं। हमने सबने जो हिंदू मैथोलॉजी के लोग हैं उन्होंने सुना होगा कि महिषासुर, व्हाट वाज द महिषासुर? महिषासुर एक असुर था, ही वाज अ एविल, राइट, एंड असीम शक्तियों का मालिक था जिसे ना तो कोई देव मार सकता था ना तो कोई इंसान। सो देवों के लिए स्वर्ग लोग जैसे हम लोग के लिए क्वारंटाइन हो गया है, वो देव सब क्वारंटाइन हो गए थे क्योंकि महिषासुर का राज शुरू हो गया था। तो दैट वाज अ चैलेंज टू ऑल। फिर क्या हुआ कि सबने बोला कि भाई इसको कौन मार सकता है, तो एक ही चीज मार सकती है, वो है माँ दुर्गा। तो माँ दुर्गा इज ए वैक्सीन। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम कोविड से कैसे छुटकारा ले सकते हैं, तो हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं। हर आदमी वैक्सीन के पीछे जा रहा है, हर फार्मा कंपनी वैक्सीन के बारे में बात कर रही है। किसी भी आदमी से पूछो, लेमैन से पूछो या नॉलेजेबल पर्सन से पूछो, वो वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि माँ दुर्गा ही इसको खत्म कर सकती है। तो दैट्स व्हाट वी हैव मेंशन्ड, द सेम महिषासुर वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एन इनकार्नेशन ऑफ माँ दुर्गा एंड क्लेंजिंग ऑल द एविल। सो ये चैलेंज थे, लेकिन अपॉर्चुनिटी ये थे कि माँ दुर्गा ही इसको क्लियर कर सकती हैं। तभी हम बोलते हैं गौर रूपे महारावे शर्व शत्र भयंकरम भक्त भयो वरदे देवी त्रामयी माँ शरणागतम। एंड देन
what had happened in Hindu mythology, माँ दुर्गा has been worshipped because जितने भी मेरे हिंदू दोस्त हैं जो सुन रहे हैं वो बोलते हैं कि सर्वमंगले मांगले शिवे सर्वार्थिके साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते. So I'm not going to teach you about the Sanskrit, but at the same time, this is the thing in the mythology which we are talking and which we are turning that challenges to opportunities. That is the basic thing. So this is one of the right time. आज हम जो है challenges to convert it to the opportunity के बारे में हम जो बात कर रहे हैं. एंड आप लोगों ने आजकल ये पोस्ट देखी होगी. हमने देखा है कि लेडी डॉक्टर्स के लिए बनाया है कि दे आर लाइक वी आर वर्शिपिंग एंड दे आर किलिंग द कोरोना व्हाइल लिविंग देयर फैमिली. दे आर हेल्पिंग. सो दे आर टेकिंग केयर द चैलेंजेस एंड दे आर टर्निंग देयर टू द अपॉर्चुनिटीज. विद दिस माय एक्नॉलेजमेंट टू फॉर दिस प्रेजेंटेशन टू द रिस्पेक्टेड फाउंडर चेयरमैन, बिकॉज मैंने जब 1982 में जब ये प्रोफेशन ज्वाइन किया था, सो बिलीव यू मी, आई वाज इन द इंजीनियरिंग कॉलेज. 45 डेज केवल मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में रहा, लेकिन मुझे ये प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता था. आजकल आप किसी से पूछो कि भाई आप चॉइस से आते हो कि आप जो है अपने आप से चले आते हो, राइट? सो बाय लक आते हो या बाय डिफरेंट वे आते हो. तो बट मैंने चॉइस करके आया. इट वाज नॉट बाय द चांस. तो बिकॉज उस टाइम मेडिकल रेप्स का बहुत ज्यादा मतलब महत्व होता था. एंड व्हेन दे यूज्ड टू गो टू द डॉक्टर, तो वहां पे वो डॉक्टर बहुत रिस्पेक्ट करते थे बिकॉज दिस गाय यूज्ड टू टेल लॉट मेनी गुड थिंग्स अबाउट द मेडिसिन्स. वो फिर मैंने ज्वाइन किया और मैं साहब को मिला. साहब को आकर के देखा कि कैसे है क्या है. देन वो चीज मेरे दिमाग में घुस गई कि भाई जो इंसान, जो महात्मा जैसा इंसान, जो उसने साइकिल में काम शुरू किया और आज इतना बड़ी हर जगह ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो व्हाई नॉट आई कैन ऑल्सो मेक माई करियर. उनकी एक बात मुझे बहुत दिमाग में घुसी है और आज भी घुसी है. इवन आई टेल दिस थिंग टू माई चिल्ड्रंस, टू माई ऑल द पीयर ग्रुप्स. वो कहते थे देयर इज ऑलवेज ए कॉमा इन द लाइफ. बिकॉज आप जब कोई सेंटेंस लिखते हो और कॉमा लगाते हो तो इसका मतलब कि कुछ लिखना बाकी रह गया है. अगर आपने फुल स्टॉप लगा दिया तो वो सेंटेंस खत्म हो गया, वो पैरा खत्म हो गया. तो वही लाइफ का है कि आप अगर अपनी लाइफ को आगे बढ़ने के लिए कॉमा लगा करके नेक्स्ट स्टेप करो तो हमेशा हम आगे बढ़ते रहेंगे. तो विद दिस ब्लेसिंग्स, विद हिज ग्रेट ब्लेसिंग व्हिच इज ऑलवेज देयर एंड द एरोमा ऑफ श्री आई ए मोदी सर, I am going to start this beautiful presentation for the Industrial University for this session. So challenges and opportunity and way forward in sales marketing, it is a session. Thank you so much once again, our own university, Industrial University, and all the dignitaries who has given me the opportunity. So अभी मैं पूछूंगा कि आप लोग अभी इसके अंदर क्या देख रहे हो. आप लोग एक आधा गिलास भरा देख रहे हो या आधा गिलास खाली देख रहे हो. It's a very old thing. So मैं लेकर के आता हूं इसमें कि yes, अभी इसके अंदर हाफ ग्लास एम्प्टी या हाफ ग्लास फुल, which I ask the question from you. तो अगर हाफ ग्लास एम्प्टी देखते हैं तो चैलेंज है, अरे बाप रे अभी तो क्या है. और अगर हम हाफ ग्लास फुल देखते हैं तो अपॉर्चुनिटी है. किसी प्यासे को बोलो अरे यार ये आधा ग्लास पानी है, जिसको प्यास लगी हो वो कहेगा साहब मेरे लिए तो 2 सिप ही काफी है, 2 सिप में तो मेरा जो है काम चल जाएगा और फिर मैं आगे चलूंगा. लेकिन जो आदमी प्यासी नहीं है उसके अंदर, वो बोलेगा साहब क्या आधा गिलास पानी लेकर के आप आए, मैं तो पूरा पानी पीना, भले वो पिए ना पिए बट वो तो ऐसी बात करेगा. तो दिस इज अ चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज. सो एनी एग्जांपल्स, आई विल गिव यू अ वेरी रैशनल एग्जांपल. तो ये रैशनल एग्जांपल ऑलरेडी ये बुक्स में भी लिखा हुआ है. एक बार क्या हुआ, 2 सेल्समैन शू कंपनी के, ये जो मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से अफ्रीका गए और वहां पे अफ्रीका में वो कंपनी ने बोला कि आप जाकर पता करके आओ कि यहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड कैसे हो सकती है. ये सच है, बता रहा हूं. तो एक सेल्समैन ने पूरा देखा, घूमा और 2 दिन में परेशान हो गया कि ये क्या है. और उसने लिखा रिसर्च कंप्लीट, अनमिटिगेटेड डिजास्टर, नोबडी हियर वियर्स द शूज. कोई पहनता ही नहीं, तो आपने मुझे बेकार में फंसा दिया साहब, कहां पे आपने अफ्रीका में मुझे भेज दिया. बट साइमल्टेनियसली दूसरा बंदा जो था वो गया, उसने देखा likewise the salesman, he said the same thing, or he has sent a telegraph to the office that research complete, glorious opportunity, nobody here wears shoes. आप देखो दोनों का सेम है, nobody here wears shoes. पहला वाला unmitigated disaster, दूसरा वाला nobody here wears shoes but glorious opportunities. This is known as the thinking of the mind. And believe you me, उसके बाद क्या हुआ कि बाटा ने वहां पे सबसे पहला अपना शोरूम खोल दिया. एंड दिस इज नोन एज द challenges has been turned to opportunities. That is the way
पर्सन फ्रॉम द सेल्स एंड मार्केटिंग सीज द थिंग्स कि कहाँ पे क्या स्कोप है, आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. सो व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम इट, ऑलरेडी मैंने बताया, बट फिर भी बोलता हूं कि इसमें क्या है, नजर तो सबके पास होती है दोस्तों, लेकिन बस नजरिया बस किसी किसी का ही होता है. तो नजर तो सबसे देख लेते हैं, बट उसको अंदर विजन जिसको बोलते हैं वो डिफरेंट है. ये आपको मैं फोटोग्राफ दिखा रहा हूं, 2 फोटोग्राफ है, चश्मे के 2 वो हैं. एक तरफ जो है राइट हैंड साइड वाला, आप देखो कि बहुत बिल्डिंग बनी है, कचरा है, ये है वो है. दूसरी तरफ एक ब्यूटीफुल बंगलो बना हुआ है. एक आदमी बोलता है क्या करेंगे वहां जाकर के, क्या है वहां पे, कुछ नहीं है. दूसरा बोलता है अरे क्या सीनिक ब्यूटी है, क्या नेचुरल ब्यूटी का आनंद है, मैं बंगला वहीं बनाऊंगा. तो ये नजरिए का फेयर है, हाउ यू टेक द थिंग्स एंड हाउ यू मेक द थिंग्स. अब क्या हुआ, इस नजरिए ने बहुत चेंज कर दिया. ग्लोब हैज चेंज. जो ब्लू कलर का ग्लोब था वो अभी जो है पैंडेमिक 19 की वजह से वो अभी रेड कलर में बदल गया. ये तो सत्य बात है, हर जगह सत्य है ये. एंड लेट्स स्टार्ट लिविंग फ्रॉम द नॉर्मल टू द न्यू नॉर्मल. तो अभी हमने सोचा कि भाई अब तो ये हो गया, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटीज कैसे बनाएं और कैसे हम न्यू नॉर्मल में आ जाएं. तो कैसे, अब देखो 2 तरह के मैं आपको फिर एग्जांपल देता हूं. एक मोटा आदमी वो जो है जिम में जाना चाहता था, तो जिम के मास्टर ने बोला कि भाई तुम ऐसा है, तुम जिम में जाओ और वहां जाके समय बिताओ. तो कहा ठीक है साहब, वहां जाएंगे, समय बिताएंगे, तो मेरा जो है वजन कम हो जाएगा और मैं भी स्लिम ट्रिम हो जाऊंगा, एकदम बढ़िया शाहरुख खान जैसा हो जाऊंगा. तो भाई साहब गए, लेकिन जिम में उनको मेहनत करनी थी, तो उन्होंने मेहनत की जगह दूसरा काम किया. वो जाकर के वहां सो गए कि साहब मैं इस पे जो है ट्रेडमिल पे सो गया हूं, तो हो सकता है कि शायद भगवान कुछ कर दे, हो जाए, तो मैं वही तो कर रहा हूं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे, रास्ते आपके सामने हैं, तो आपका कुछ नहीं होगा. इसलिए मेहनत करनी बहुत जरूरी है. तो दैट इज अ डिफरेंस. तो योर टाइम एंड अपॉर्चुनिटीज आर वेस्टेड. आपको जो टाइम मिला, आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिली, वो वेस्ट हो जाती हैं. और अगर आपने वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया विद द राइट एफर्ट्स, तो फिर आपका वो जो टाइम है वो वेस्ट चला जाता है. यही अगर मोटा आदमी अगर जाकर के जिम रूम में जाता, जो 2 घंटा सो रहा है, तो आधा घंटा भी अपनी बॉडी को एक्सर्ट करता, मेहनत करता, तो उसके बॉडी में जो है वो एक स्मार्ट बॉडी निकल कर के आती. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल आई थॉट आई विल बी गिविंग टू यू, टू ऑल द न्यू बॉडीज व्हिच आर हियर. सो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन द न्यू नॉर्मल. हम न्यू नॉर्मल की बात करते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज है. बहुत अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों, बहुत अपॉर्चुनिटीज है. हम लोग पहले लोकल थे, हम लोग केवल एक छोटे जगह में रहते थे. अब तो हमारे लिए चाहे यूएस है, चाहे यूके है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, सब हमारी फिंगर टिप्स पे है. फिंगर टिप्स पे है. सिंगल वन फिंगर कैन सी द एंटायर वर्ल्ड एंड सिंगल वन थंब कैन मैसेज टू द एंटायर वर्ल्ड. दैट इज द ब्यूटी व्हिच हैज हैपेंड इन द न्यू नॉर्मल. पहले ये कहां था, हम फिजिकल से डिजिटल हो गए. जो हम सोचते नहीं थे हम सब करने लगे. 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा आजकल अगर अपनी जो है पढ़ाई करना शुरू कर दिया, तो आप कभी सोच सकते थे कि हमारे घर के बच्चे जो 3 साल के, 4 साल के कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपैड छोटे लेके पढ़ाई कर सकते हैं? कभी नहीं सोचा था. हम कहते क्या फॉरेन वाले ये सब करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? बट अभी शुरू हो गया. वर्बल से हम वेबिनार पे आ गए. हम वेबिनार्स में इतना पढ़ाई हो रही, इतना ज्यादा पढ़ाई हो रही है. एंड ऑल द पीपल हु हैव लॉट ऑफ द एक्सपीरियंस and who want to share the knowledge, they all have come out, they have jumped in the webinar कि चलो मैं नॉलेज शेयर करूंगा. पहले जो लोग पैसा लेकर के नॉलेज शेयर करते थे, आजकल वो लोग फ्री होकर के नॉलेज शेयर करते हैं. एक्सेस ऑफ द यूजर्स ऑफ फेसबुक बढ़ गया, ट्विटर बढ़ गया, आप देखो लिंक्डइन बढ़ गया, लॉट मेनी थिंग्स आर कमिंग अप. तो जो नॉलेज का जो गेन है वो बढ़ता गया. पहले भी नॉलेज थी, ऐसा नहीं कि पहले नॉलेज नहीं थी, सबके पास नॉलेज थी, बट सब अपने पास रोक के रखे थे. अब नॉलेज उन्होंने खोल दिए सामने कि भाई आप आओ, लेट अस इंटरेक्ट, लेट अस शेयर, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग एंड केयरिंग इज शेयरिंग. इट्स अ वेरी ओल्ड थिंग इज देयर. एंड मल्टीमीडिया मार्केटिंग बहुत बढ़ गई, एंड मोर ई कनेक्ट हैज स्टार्टेड विद योर टारगेट ऑडियंस. सो दिस इज अ कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट ऑफ द न्यू नॉर्मल हैज हैपेंड. सो वी आर एबल टू सी कि ये चैलेंजेस को हमने अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल दिया. हाउ वी आर मेकिंग अ पेस विद द इंटरनेशनल पीपल. सो द अपॉर्चुनिटी फॉर द न्यू नॉर्मल, पहले हम लोग बैठ करके मीटिंग करते थे, बातचीत करते थे कि भाई चलो बैठ के बात करेंगे, मीटिंग करेंगे. अब ये जो मीटिंग और बातचीत, ये मॉडल ही चेंज हो गया. मॉडल इनोवेशन हो गया, ब्रांड बिल्डिंग हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई है. न्यू अपॉर्चुनिटीज आई हैव सीन. यंग गाइज फ्रॉम द कॉलेज, जैसे आप लोग कॉलेज के यंग लड़के हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के, बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं,
They started doing podcasting. Believe you me, I personally, मेरे पास 4 डिफरेंट कॉलेज के मेरे साथ पॉडकास्टिंग हुई, एंड इट इज नॉट मेरे साथ, बहुत लोगों के साथ हो रही है. ब्लॉग्स लोग लिखना शुरू कर दिए, छोटे छोटे बच्चे बीएससी के एंड बीटेक के, दे आर राइटिंग ब्लॉग्स एंड इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंट ब्लॉग्स. स्टोरी राइटिंग स्टार्टेड, health awareness campaign started, mental stress busting campaign started. So what not it has started. So lot many things have been added in that, which is giving us lot of opportunity to make the career and also see the better vision which from the today's scenario. तो अभी और हम बात बताते हैं कि challenges को कैसे अपॉर्चुनिटी में लोगों ने टर्न किया, विच आई एम श्योर कि आपने देखा होगा. हाउ कोविड-19 has proven that whatever pulls you down makes ready to leap even higher. बॉल जो नीचे जाती है वो बॉल ऊपर आती है. जितनी जोर से नीचे बॉल फेंकोगे उतनी जोर से बॉल ऊपर आएगी. कैसे आई है आप देखो. ये सबसे पहला एग्जांपल कि जो मैंने बताया, 4 साल का बच्चा एक स्मार्टफोन लेकर के पढ़ाई कर रहा है, एबीसीडी सीख रहा है. 5 साल का बच्चा पढ़ाई कर रहा है. क्या चैलेंजेस था. और हम लोग पेरेंट्स बेचारे खड़े होकर के लाइन लगा के बच्चों को छोड़ने जाते थे बस में, जाकर के 1 घंटा पहले लाइन लगा के आते, मेरा बच्चा वापस आ रहा है तो मैं इसको बस में लेकर के या स्कूटर में बैठा के या कार में बैठा के ले आऊं. एवरीथिंग हैज बीन चेंज एंड एवरीथिंग इज हियर. मदर एंड फादर, they are able to see what my child is studying. They are able to see factuality of the life. So education is not limited to physical. It has gone to completely digital from 4th standard to the doctorate level and more than that level. And not only this, the companies, Byju's has jumped up and Udemy has joined up. Udemy is for all the professionals. I am also a part of one of the important lead from the basically from London. So they are doing a lot of the free education to the professionals. So I also did multiple courses through the Lead University, right? So there are a lot of things are there. Earlier I was never doing it. I thought चलो ठीक है, मैंने graduation किया, MBA कर लिया, बाकी course कर लिया, IIM में चला गया, हो गया. But I also saw multiple opportunities are there in front of you, so you can make your career. आपकी जो है 3 हफ्ते की, 2 हफ्ते की, 2 घंटे की पढ़ाई आपको इतनी चीज ऐड करती है कि you can become a master of the things. Then the second opportunity has come कि भाई हम तो जाके दुकान में सामान खरीदेंगे, राइट? हम तो दुकान में जाएंगे तभी खरीदेंगे, चाहे वो 1 किलो की चीनी खरीदनी हो, चाहे 5 किलो की खरीदनी हो. दुकान में नहीं गए तो मजा नहीं है, पता नहीं चीनी खराब आ जाए. But that entire thing has changed. Work from home and the sell from the home has started becoming a talk. आज का जो बाजार में बेचने वाला बंदा है वो भी घर पे बैठा हुआ है और ऑर्डर देने वाला भी घर पे बैठा हुआ है, और दोनों चीज एक्लमेट होकर के आपको सामान मिल जाता है. एंड हाउ टुडे, सपोज Zoom पे आज हम बात कर रहे हैं, we have Amazon, we have Microsoft meeting, we have so many meetings, Cisco meetings, so many meetings are there. You can connect any part of the person. आज हमारा ये Facebook लाइव चल रहा है, राइट? सो ट्विटर पे हम लोग हैं, कहीं पे भी किसी से के साथ हम कनेक्ट करके हम बात कर सकते हैं. आपको लेटेस्ट बात बताता हूं, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने लास्ट वीक रेस 2020 किया था ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इट वाज कनेक्टेड ऑल द ग्लोबल लीडर्स, बड़े बड़े लोग रेस में आकर के रेस 2020 में कनेक्ट हुए एंड दे हैव गिवन द ब्यूटीफुल टॉक एंड इट इज ऑलवेज ऑन द Zoom मीटिंग. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म व्हिच वी हैव सीन. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में जो हम लोगों ने बदला, मिल करके बदला. वो कैसे बदला कि अगर हम नहीं जा सकते हैं तो जो हमारे कस्टमर प्रोवाइडर्स हैं वो हमारे पास आ गए. कैसे आ गए? सब्जी खरीदनी है, बिग बास्केट अवेलेबल है. सब्जी पसंद नहीं आए, वापस कर दीजिए. हम रेस्टोरेंट नहीं जा सकते हैं तो जोमेटो स्विगी आपके घर में रेस्टोरेंट बना के ले आया. हम एक बल्ब नहीं खरीद सकते हैं जाकर के बिकॉज बंद है, तो बल्ब फ्लिपकार्ट डिलीवर करता है. 2 बल्ब 120 रुपए के आपके घर पे जो है 240 रुपए के डिलीवर हो जाएंगे. इट मीन्स दैट अपॉर्चुनिटीज हैज बीन सो मच that they have changed the entire thing scenario. They said आप परेशान ना हो, हम पूरी दुकान आपके पास लेकर के आते हैं, आप सेलेक्ट करो साहब, पैसे में कम दो आप हैं, और आप डिलीवरी भी जो है 24 घंटे, और माल पसंद ना है तो वापस भी ले जाओ. ये कहां पहले होता था? Then after that another very important thing has come up which has really given a lot of change, which is on people were afraid to go to doctor. अपने प्रोफेशन की बात करता हूं मैं कि भाई डॉक्टर के पास हम नहीं जाएंगे, डॉक्टर नहीं मिलता, कोई बात नहीं साहब, व्हाट्सएप कॉल करेंगे. आजकल हमारे पास जो है टेलीमेडिसिन अवेलेबल है.
हम उनसे बात करेंगे, डॉक्टर दे आर एबल टू सी। हाँ, सीरियस केस के लिए जाना पड़ता है, बट नॉर्मल जो केस होते हैं व्हाट्सएप कॉल हो जाती है, वी आर एबल टू टैग। देयर आर सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स हैज कम, हम भी अपना जो है प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, डॉक्टर्स को देंगे, डॉक एक्सा आ गया है, देयर आर प्रैक्टोस आर देयर, सो मेनी थिंग्स आर देयर, सो दैट अपॉर्चुनिटी हैज बीन टर्न्ड इन दैट वे। और मेडिसिन के लिए हम नहीं जाएंगे भाई रिटेलर्स पे, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि 1 mg अवेलेबल है हमारे पास फार्मेसी अवेलेबल है, वो 15% डिस्काउंट भी देता है और हमारे घर पे मेडिसिन भी पहुंचा देता है। तो प्रिस्क्रिप्शन लोड करिए आप हैं, और आपका जो है सामान आपके पास आ जाएगा। Am I right or not? So this is the way the entire challenges has been converted to opportunities. ये चीज जो है ये पहले नहीं थी, लोग सोचते नहीं थे। आज भी वही लोग हैं और पहले भी वही लोग थे, लेकिन कैसे जो है कंप्लीट चेंज किया ये सेल्स एंड मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी देखते हुए लोगों ने। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केटिंग, व्हिच इज अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एक ब्यूटीफुल रेड कलर में एक प्लग दिखाई दे रहा है, वहां पे 2 कोका कोला की बॉटल है। तो कोका कोला कैसे बात करता है? पहले रेडबुल को हम एनर्जी की बात करते थे, अब कोका कोला ने प्लग की जगह 2 बॉटल्स लगा दी, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम जो है प्लग नहीं लगाते हैं, कहीं भी जगह हम प्लग को इंसर्ट करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि आप अपने, ये प्लग है ना, प्लग को इंसर्ट किया, आप अपने मोबाइल को एनर्जाइज कर रहे हैं, मतलब आप उसको जो है चार्ज कर रहे हैं। उन्होंने 2 कोका कोला बॉटल लगा दी, जी आप कोका कोला पियो और आपको जो है एनर्जी आ जाएगी। देखिए क्या मार्केटिंग है, सिंपल मार्केटिंग, कुछ नहीं है, बट इट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो मार्केटिंग इज कम्युनिकेटिंग द वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट टू योर कस्टमर। इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि अगर आप दूसरा ब्रांड पिएंगे तो आपको एनर्जी नहीं आएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट दिस इज द वे दे आर मार्केटिंग। पहले एक प्रॉमिस टूथपेस्ट आता था, उसमें लॉन्ग दिखाते थे, हर टूथपेस्ट में लॉन्ग होता है, लेकिन वो लॉन्ग दिखा के बताते थे कि हमारे टूथपेस्ट में लॉन्ग है। आजकल देखिए आप हर टूथपेस्ट के बाद जो है लॉन्ग होता है, तो ये मार्केटिंग की बात होती है। अभी आजकल कुछ डिटर्जेंट आते हैं, वो बता दें नींबू की धुलाई है ना, तो क्या चीज है, सब कुछ है। दिस इज नोन एज पुटिंग द थिंग्स इन द राइट वे ऑफ द मार्केटिंग पार्ट। लेटेस्ट अभी आप लोग एक ऐड देखेंगे, ओप्पो ने लॉन्च किया है, कल लॉन्च किया है, खुशी से खुशी तक, राइट। उसमें देखो आप, कुछ नहीं, सिंपल वे है, उन्होंने मार्केटिंग में ऐड किया है कि आप कैसे अपनी खुशी दूसरे के साथ बांटो, आपको भी खुशी मिलेगी और दूसरे की भी खुशी ऐड होगी। तो दिस इज द वे दैट यू आर गोइंग टू मार्केट। जबकि आप देखो मोबाइल का उससे कोई रिलेशन नहीं है, बट उन्होंने कैसे उसको कनेक्ट किया है, खुशी से लेके खुशी तक, इट्स अ वंडरफुल कनेक्शन देयर। सो नाउ पहले हम प्रमोट करते थे, रेडियो में बात करते थे, ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग वाज देयर, बट अभी क्या हो गया है, अभी तो ट्रेडिशनल वे ऑफ द मार्केटिंग है, इट इज बिकमिंग ए डिजिटल मार्केटिंग। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट इज देयर, ईमेल मार्केटिंग है, कुछ नहीं करना है, घर पे बैठिए और आप इंश्योर करिए कि थिंग्स आर देयर। बट घर में बैठने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम सब सुस्त हो जाएं और अपना नहीं करें, बिकॉज अभी दिमाग ज्यादा दौड़ाना पड़ेगा। वी हैव टू मोर see that our this brain which was being used just 7%, it should be used more than that. तो normally हम 7% ही brain को use करते हैं, remaining हमारा 93% brain हम नहीं use करते हैं। तो let us start using it and let us start grabbing the thing which is very important. ये आपको ये जो फिल्म एक्टर है, ये समझ में आया कौन है ये है आनंद। एक बहुत ही हिट मूवी हुई थी और उस टाइम उसमें बोला था बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो मुस्कुराहट तो आई गई होगी थोड़ी सी, और ये बहुत ही फेमस डायलॉग है जो कि ये लिखा गया था, और उसके बाद अभी चेंज हो गया वो चीज। बोलता है बाबू मोशाय, मार्केटिंग डिजिटल होनी चाहिए, ट्रेडिशनल नहीं, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू डिजिटल। उसके बाद राजेश खन्ना साहब की एक दूसरी पिक्चर आई थी, बहुत हिट आई थी, अमर प्रेम। अमर प्रेम में बोलते हैं, पुष्पा मुझे आंसू देखे नहीं जाते, आई हेट टीयर्स। ये राजेश खन्ना ने शर्मिला जी से बोला था। अब डिजिटल में क्या बोलेंगे, पुष्पा मुझे गलत मार्केटिंग देखी नहीं जाती, कोविड हेट ट्रेडिशनल मार्केटिंग। कोविड को ट्रेडिशन नहीं चाहिए, कोविड बोलता है दूर रहो, घर से रहो, यूज करो डिजिटल और सेफ रहो। दिस इज द वे दैट द थिंग्स आर देयर। सो वे ऑफ मार्केटिंग, ट्रेडिशनल में था, रेडियो था, प्रिंट था, टीवी था। अब आप पहले ऐड देखते थे, टीवी का ऐड आता है, अरे बाप रे, टीवी का ऐड आया तो कुछ अच्छी चीज होगी। अब तो आपको टीवी नहीं, आप मोबाइल खोलिए, लिंक्डइन खोलिए, फेसबुक खोलिए, कुछ भी खोलिए, फट से सबसे पहले ऐड आता है। सर्च ऑप्टिमाइजेशन इंजन, SOE, SEO, right? It is going to give you the best thing which is available there. There is no need to wait for the TV ad. And
हार्डर टू टारगेट द ऑडियंस था पहले, क्योंकि हर आदमी तो टीवी देखता नहीं है, हमेशा उस टाइम पे अवेलेबल नहीं रहता है। मेरे और आप जैसे लोग, आप लोग पढ़ाई करते रहते हैं, हम लोग जो है मार्केटिंग की बात करते रहते हैं, एंड मैडम लोग जो इंस्टीट्यूशन पे कहते हैं कि कैसे कितना अच्छा करें। प्रतीक सिंह साहब जो है वो LND में सोचते हैं मैं किस वे में जो है लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऐड करूं। सो लिटिल इंटरेक्शन पहले होता था। हाई प्राइस फॉर एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा हो गया था, 70 हजार रुपए जो है वो 15 मिनट के ऐड के लिए लेते थे। अब तो खैर उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया, 1.25 लाख रुपए हो गया। कोई परफेक्ट टारगेटिंग नहीं, कॉमन मैन के लिए टारगेटिंग कर दो। बॉर्नविटा पीना है नहीं पीना है, लेकिन बॉर्नविटा सबको दिखाएंगे। सो दैट वाज द थिंग्स आर देयर। पुअर कैंपेन, ROI मालूम ही नहीं है। आप बॉर्नविटा तो दिखा रहे हैं, लेकिन कितने लोग पीने वाले हैं? जो पीने वाले वही पिएंगे, नए आदमी नहीं पिएगा, क्योंकि उसका पैसे नहीं है भाई पीने के लिए। लेकिन आपको ऐड का 1,20,000 रुपए तो देना ही है, क्योंकि आपको प्राइम टाइम पे जो है वो ऐड देना है, और आपका 10 सेकंड का ऐड वो तो पैसा चूस लेगा। तो ROI तो कहाँ आने वाली है? बड़ी कंपनी की ROI आती थी, छोटी कंपनी की ROI तो आती नहीं थी। ROI का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अब जो है क्या हो गया, अब आपके पास पैसे भी बचे और आपके पास आप एक सॉलिड मार्केटिंग शुरू हो गई। रीच डायरेक्टली इन द हैंड्स ऑफ योर कस्टमर। आपको मालूम है जो राइट कस्टमर है ना, उसके पास आप मार्केटिंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू हो गई, ईमेल मार्केटिंग शुरू हो गई, मार्केटिंग ऑटोमेशन शुरू हो गया, इनबाउंड मार्केटिंग के डिफरेंट लेवल्स आ गए, एफिलिएशन ऑफ द मार्केटिंग हो गया, वेबसाइट्स खुल गई, लोगों ने कर दिया कि भाई मेरी वेबसाइट पे ये चीज अवेलेबल है। एंडलेस इंटरेक्शन, you send a mail, you will get the reply in the mail within 5 minutes of time. आजकल टेलीकॉलर्स बैठे हुए हैं, you put the things on that, they will say how I can help you, immediately the help will be there. हायर कस्टमर एंगेजमेंट शुरू हो गए, ईज ऑफ मेजरिंग रिजल्ट्स एंड कन्वर्शन स्टेटस। आप रिजल्ट तुरंत मेजर कर सकते हो, पैसा लगेगा नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑन डिजिटल पार्ट। सो आपको फिजिकल नहीं होना है, आपको डिजिटल में बैठ करके ही काम कर लेना है। दिस इज द वेज ऑफ मार्केटिंग हैज बीन चेंज। सो अभी क्या है, मैंने बोला था 3 साल 4 साल का बच्चा, सो बच्चों से बुजुर्ग तक द वर्ल्ड इज टेकन ओवर अक्रॉस, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक। आज आप देखिए, एक पढ़ा लिखा आदमी तो जो हमेशा सोशल मीडिया में कनेक्टेड था या नहीं था, लेकिन आज की डेट में एक बच्चा भी आपका स्मार्टफोन, 3-4 साल का बच्चा भी आपका स्मार्टफोन हैंडल कर लेता है। आजकल के 12 साल के बच्चे आपको नए ऐप्स के बारे में बताएंगे जो कि फादर या मदर को नहीं मालूम होता है। आपके जो है बुजुर्ग लोग जो कि पहले कभी एप्स देखते नहीं थे, फेसबुक पे नहीं आते थे और ऐड नहीं देखते थे, आजकल देखिए बुजुर्ग लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द लिटरेट पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इलिटरेट पीपल, बिकॉज इलिटरेट पीपल के पास भी आप देखो सब स्मार्टफोन लेकर के, चाहे इधर का मेड उधर का मेड लेके काम करते हैं, देखते रहते हैं, और इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है, दुनिया की कोई चीज कहीं की भी कैसी भी अच्छी बुरी आप सब उसमें देख सकते हैं। तो the बच्चों से बुजुर्ग तक the world has taken over a next leap, that is known as the complete change in this beautiful new normal, and that is known as the challenges have been converted to opportunities. अब आप, अगर मैं इंडिया के बारे में बात करता हूं, एक ये बहुत अच्छा डेटा है जो कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग ने कितना चेंज किया। 85% of small and medium businesses user, they started providing Twitter to provide customer. 70% of the Twitter users feel more positive about a brand when they tweet. तो जब वो ट्वीट करते हैं तो 77%, 100 में से 77 लोग को अच्छा लगता है। 60% लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पहले जो है केवल 18 से 25 साल के बीच में था, लेकिन अभी क्या है, वो यंग बडीज के लिए था। अभी क्या, इंस्टाग्राम में बहुत से लोग चले भी गए हैं, वो यूज कर रहे हैं। 150 million hours of YouTube is now watched by the people every day. किसी भी चीज में आप YouTube देख लो, कोई भी सामान आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी चीज खोलनी होती है, कोई भी चीज करना, आप गूगल में चले जाओ, वहां देख लो। लिंक्डइन में कितने लोग, 75% of the B2B marketers have increased. 3 million companies are using the WhatsApp for business. ये मैं इंडिया के फिगर बता रहा हूं दोस्तों आपको। फेसबुक में 93% of marketers are using the Facebook. So this is the complete paradigm shift which has happened in the social media. This is a very authentic data which I have taken and it is basically for India. मैं बाहर की बात ही नहीं कर रहा हूं। आप देखो इंडिया में एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया दोस्तों। पूरी इंडिया, हर आदमी कितना ज्यादा टेक से भी हो चुका है। That is the opportunity which has been utilized. पहले बाहर होता था, ऐसा नहीं कि ये चीज नई बन करके आ गई, पहले भी थी ये, लेकिन अब हमने यूज करना शुरू किया बिकॉज द इन्वेंशन, रिक्वायरमेंट इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो रिक्वायरमेंट हो गई तो भी इन्वेंशन शुरू हो गई, काम करना शुरू कर दिया। ये बंदे को आप देख रहे होंगे जिसकी हमने आधी फोटो दिखाई है, इसका नाम है स्टीव जॉब्स, करेक्ट। और दिस इज अ मोस्ट फेमस पर्सन
एंड ही ऑलवेज से स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये बड़ा खतरनाक बोला, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, मतलब आप भूखे भी रहो और जो बेवकूफ भी रहो। तो क्यों है ये है स्टे हंग्री मीन्स ऑलवेज हैव ए बर्निंग एपेटाइट टू कंज्यूम नॉलेज। ऑलवेज दोस्तों, लर्निंग एक ऐसी चीज है जो मैंने खुद देखी है, कभी उसका एंड नहीं है, कभी उसका एंड नहीं है। लर्निंग एक ऐसा आपके पास अस्त्र है, शस्त्र है, जिसको कोई चोरी नहीं कर सकता, किसी को बड़े से बड़ा विद्वान आपसे छीन नहीं सकता, कोई आपका शत्रु आपसे नहीं ले सकता, क्योंकि जो लर्निंग आपके पास रहेगी वो आपके जीवन भर रहेगी। जैसे कि एक बार बच्चा जब है साइकिल चलाना सीख लेता है 10 साल की उम्र में, 12 साल की, वो कभी जिंदगी में गिरता नहीं है। सेम थिंग, लर्निंग एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा आपके दिमाग में घुस जाएगी, वो हमेशा रहेगी। तो दैट्स व्हाई ही सेड स्टे हंग्री। नॉलेज के लिए हमेशा हंग्री रहो, पता नहीं क्या चीज हो जाए, कौन आदमी क्या अच्छी चीज सिखा दे। स्टे फुलिश ही सेड नेवर बिलीव दैट यू नो एवरीथिंग, बिकॉज एक साउथ इंडिया के अगर कोई बच्चे यहाँ पे हैं तो एक पिक्चर आई थी बाबा, तो वो सेड कि नोइंग इज लिटिल एंड अननोइंग इज ओशन। That was the Rajnikant saying there. So Baba, knowing is little and unknowing is ocean. That was the caption of that movie, and it is true also. हम जितना जानते हैं वो बहुत little है. Unknowing thing is ocean there in the world. Many things are there, many things are there which we are not aware about it. But knowledge can add lot of things on that. So he also said that my competition is anyone who has internet and a fire within to change the world. स्टीव जॉब ने ये बोला था कि उसका कंपटीशन उसी के साथ है जो चेंज कर सकता है वर्ल्ड को, जिसके पास इंटरनेट है, जो कहीं से भी देख करके कर सकता है। तो दैट इज द रीजन वी रिस्पेक्ट दिस जेंटलमैन, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, एंड वी ऑलवेज लव हिम, बिकॉज एप्पल तो एप्पल ही है दोस्त, कुछ भी हो उसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, चाहे वो नया प्रोडक्ट कोई भी आ जाए, बट एप्पल के सामने तो सब बेकार होते हैं। एप्पल इज ए स्टेटस सिंबल। Now COVID is an opportunity to learn and start something new. अब क्या चीज है जो नया हम लर्न करेंगे? लर्न न्यू स्किल्स। दोस्तों अभी देखो, आप सब लोग बीएससी के हो, बीटेक के हो, एमटेक के हो, some people are on the PhD also. Coding is very important. Digital marketing is important. And the people who are on the post graduation, big data analytics is very, very important. And last but not the least, knowledge skilling is a buzzword. आपको नॉलेज स्किलिंग करनी ही है, हमें करनी है, मुझे करनी है। मैं घर में भी जाता हूं तो whenever I get the time I keep on reading through the internet. My wife also said, आप घर पे भी आके क्या करते हो? मैं कहा मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता है, पहले उतना नहीं पढ़ता था, लेकिन अब मैं पढ़ने में बहुत मजा आने लगा है। Let me start further add my knowledge. So it is a requirement now. You cannot escape. आप नहीं भाग सकते हो। अगर आपको दौड़ना है जिंदगी में, आगे बढ़ना है, तो नॉलेज तो आपको दोस्तों गेन करनी ही पड़ेगी। काम करना है, नॉलेज गेन करनी है। So why I am saying you as a person, ऐसे सपोज करो जैसे अभी हर्ष आया या कोई भी आया, चाहे मैं आया, चाहे प्रदीप जी आए, चाहे कोई भी है, you are yourself a mega brand. हम किसी से कम नहीं है। क्यों मैंने ये बोला? क्योंकि बायोलॉजी में या गायनेकोलॉजी में बोलते हैं कि देयर आर द 1000 स्पर्म्स व्हिच गोज रन बट ओनली 1 स्पर्म व्हिच मेक्स द जाइगोट। जब भी हमारा आपका जन्म होता है तो हमारे साथ हमारे जो स्पर्म थे, जो मेरा स्पर्म है या आपका स्पर्म है, उसके साथ हजारों स्पर्म दौड़े थे, बट एक ही जाइगोट हुआ, इसलिए उन हजारों लाखों में हम एक हैं। तो दैट्स व्हाई रीजन कि वी आर ए मेगा ब्रांड। वी आर ए मेगा ब्रांड, वी हैव टू प्रमोट इट। अपनी जिंदगी को वेस्ट नहीं करना है, ये हमेशा अपने दिमाग में डालो। आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, बुरा की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। वर्क हार्ड ऑन योर स्टडीज, बिकॉज सिंस यू आर ए कॉलेज पर्सन, आई वुड रिक्वेस्ट यू, स्टडीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज द बेस लाइन। कंसंट्रेट ऑन गेनिंग द नॉलेज। जितना आप नॉलेज गेन कर, आज मैडम नम्रता ने बोला कि ये हर्ष जो है ये हमारा वन ऑफ द स्टूडियस स्टूडेंट है, सो आई वाज एबल टू फील दैट स्माइल एंड ग्लोरी ऑन हर फेस। तो ऐसा नहीं कि बाकी बच्चे में भी 206 बोन्स हैं, बाकी बच्चे में भी सेम दिमाग है, तो अगर एक बंदा उस लेवल पे आ सकता है तो सब बंदे भी उस लेवल पे आ सकते हैं। मेरा ये सोचने का तरीका है, और ये सब केवल आपके हाथ में है। मैडम नम्रता कैन नॉट मेक इट, इट्स ओनली यू हु कैन मेक द डिफरेंस। रीड बुक्स, फिजिकल और डिजिटल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी तो आपके पास डिजिटल बुक्स इतनी अवेलेबल हैं, फ्री में अवेलेबल हैं। पढ़िए, प्लीज पढ़िए, add the knowledge, nobody will steal that knowledge. Stay connected across. जो भी जानकार आदमी है उसके साथ कनेक्ट में रहिए, बिकॉज देखो एक चीज तो ध्यान रखा
कोई भी नॉलेज वाला आदमी, उसको मजा आता है नॉलेज शेयर करने में। मैं भी ये जानता हूं कि अगर मैंने कोई नॉलेज शेयर की अपने गुरु से या पीयर ग्रुप से, तो अगर मैं एक साल मतलब कुछ जिंदगी के बाद खत्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, दुनिया से चला जाऊंगा, तो वो नॉलेज मेरे में आके दफन हो जाएगी। बट अगर मैं नॉलेज किसी को दे के जाऊंगा, तो वो बंदा या वो बंदी फर्दर उस नॉलेज को लेकर के आगे जाएगी। तो इट इज लाइक ए ब्यूटीफुल अरोमा, कि अगर आप किसी रूम में जाए, किसी ने अरोमा डाला, तो पूरा वाह, व्हाट ए ब्यूटीफुल अरोमा इज देयर। दैट इज द वे द नॉलेज हैज टू बी टेकन एंड इट हैज टू बी गिवन। प्लीज ऑलवेज बिल्ड पॉजिटिव एनवायरमेंट्स ऑफ लर्निंग। अभी हर्ष ने बोला कि मेरी पूरी टीम month on month 100% है। Believe you me, from last 24 months we are achieving, right? Why we are achieving? I am sitting here in new normal. मार्च से मैं कभी मार्केट में नहीं गया, 6 महीने हो चुके हैं। In spite of that, मेरी हर टीम का मेंबर they are achiever, because पॉजिटिव एनवायरमेंट से आदमी दुनिया की कोई भी शक्ति को जीत सकता है, ये मेरा मानना है। अगर आप हर आदमी को सपोर्ट करें और आप पॉजिटिव हैं माइंड में, तो यू कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ। दैट इज बेसिक थिंग विच आई हैव लर्न इन माय लाइफ। बिल्ड हैप्पीनेस व्हाइल बीइंग हैप्पी। सेकंड थिंग इज कि अगर आप खुद ही कॉन्स्टिपेटेड रहोगे, तो आप दूसरे में हैप्पीनेस कहां से डालोगे? अगर आप हैप्पी रहोगे तो दूसरे में आप हैप्पी। अगर मैं सपोज करो प्रदीप जी के पास जाता हूं या प्रदीप जी मेरे पास आते हैं, वो स्माइल से आते हैं, तो मैं भी अपने आप ही स्माइल सामने निकल के आ जाएगी। अब वो आकर के बोले यार बहुत परेशान है, ये वो है, तो 2 बार बोलूंगा, या तीसरी बार ये बंदा आएगा, प्रदीप जी बोलेंगे, पीके राजपूत आएंगे तो बोलेंगे परेशान है, या इनसे बेटर है कन्नी कट लो, नहीं तो ये अपने दुखड़ा सुनाते रहेंगे। So happiness always add happiness and have an attitude of learning. Again, I am telling you, ये दिल मांगे मोर, ये जो है वो कोक का ऐड नहीं है, ये अपना ऐड है पढ़ाई के लिए। ये दिल मांगे मोर, keep on learning, keep on adding strength in your brain. So tools to conquer to the opportunities. Now I will talk about the beautiful tools which are available here. One is the chat box, which is very example. WhatsApp for the business. Since we can talk WhatsApp से बिजनेस की बात करते हैं, आजकल फ्री कॉल अवेलेबल है। यू कैन सी एनी पर्सन ऑन द वीडियो थ्रू द WhatsApp। चैट बॉक्स में अवेलेबल है, राइट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ बज़वर्ड, right? 1mg, Practo, Apple Watch, so many things are there. These are mobile diagnosis and AI assistant to the doctors. And we are also giving DocXR to the doctor. So that is the way that we are adding the artificial intelligence in the hard part. Voice search and voice search SEO. अभी सपोज करिए कि मुझे आई एम बेस्ड एट अहमदाबाद, अगर मुझे कहीं मानिक चौक जाना है और मुझे रास्ता नहीं मालूम है, तो आई पुट द इन द गूगल, आई से मुझे मानिक बेस्ट वे ऑफ रीचिंग मानिक चौक। आपने बोला, गूगल ने बताया, एंड यू आर गोइंग टू रीच इन 35 मिनट्स ऑफ टाइम फ्रॉम भोपाल, साउथ भोपाल। दिस इज द वे, दैट इज द वॉइस सर्च एंड SEO is going to make a difference. Blockchain technology to earn the money. Bitcoin has again come back. So this is a technology which you can know that what are the things are there. Not only this, there are multiple things which are there. The share markets में क्या चल रहा है, up है, down है, so many things you can see. Then Alexa is one of the best, beautiful example. Alexa ये कर दो। आजकल तो कार में Alexa आ गया दोस्तों। Kia, you are providing Alexa in the car. That's the revolution has come. Mid segment कार में 10 लाख की 12 लाख की गाड़ी में Alexa आ गया है। I'm not talking about the cars like a Rolls-Royce or Mercedes. I'm talking about the mid-segment car. Then another thing is Geo Glass. I'm sure many of you are tech savvy. आपने लास्ट मंथ देखा होगा कि इनके रिलायंस वालों के बच्चों ने कैसे जियो ग्लास को प्रमोट किया। इट इज गोइंग टू कम, 12,000 रुपए में आने वाला है, एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल. गूगल लेंस इज अवेलेबल. एंड देन nowadays nobody wants to have the Excel. Everybody wants to visualize the thing. कैसा दिखता है? What is the graph is there? What is the pie graph is there? How it comes out? How the world is coming up? कितने लोग हैं? कितना percentage है? So nobody wants the outdated. That become an obsolete part. So Tableau is the latest one. From last 2-3 years it has come up, and now it is becoming about. As SAP में लोग जो भी कर रहे हैं, they are booming like anything. Power BI. So you can understand lot many good things are there, which is going to make our life simpler and also beautiful also. तो न्यू बज़वर्ड इन द मार्केटिंग, लेट मी टेल यू, बिकॉज यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो एमटेक के भी हैं, कुछ एमफार्मा के भी हैं, कुछ पीएचडी हैं. तो लेट मी टेल यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने आपको बोला था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रेस 2020 किया था लास्ट वीक, एंड दे हैव आल्सो स्पोकन अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज रिक्वायर्ड इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया. I also remember that our PM has said during after his first election that we have to be digitalized. And see, at that time COVID was not there.
but at the same time, how the world has changed and become more digitalized. See, this is a vision which a person talks on the higher level. So this is the artificial intelligence that you tell. आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी रजनीकांत की या एक दो पिक्चर्स आई थी. That was a complete part of the artificial intelligence. Even one picture was there which is basically of Shah Rukh Khan. I don't remember that. उसमें भी वो AI के ही related था. That the robo was there. It was working like a thing. So AI refers to the stimulation. Robo. Sorry. Movie name was Robo only. हाँ, correct. Thank you. Raman, correct. So उसमें it is completely AI, ना, artificial intelligence refers to the stimulation of the human intelligence in machine and that are programmed to think like humans and mimic their actions. क्या बढ़िया आपने बताया रावण मूवी में कितना बढ़िया वो जो है देख करके मिमिक करता था वो करता था. And the term may also be applied to any machine that exhibits the traits associated with the human mind such as learning and problem solving. So this is there with that. But artificial intelligence वहीं तक सीमित नहीं है. Artificial intelligence बहुत जगह है. सोशल एरिया नेटवर्क्स में है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में. अगर आप अभी लिंक्डइन में खोलिए कोई पोस्ट लिखिए, इमीडिएटली लिखेगा ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड. सो ऑलरेडी इट हैज बीन फीडेड. सपोज करिए कि आप कोई चीज खोलते हैं तो इमीडिएटली द वॉइस ऑफ वन लेडी विल कम, राइट, एंड इट इज अगेन फ्रॉम द रिलेटेड टू द एआई पार्ट. आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, ट्रेन लेट होती है, बट यू आर सीइंग द अनाउंसमेंट ऑफ द लेडीज कमिंग अप. इट इज ऑलवेज बीन प्रिपेयर्ड. उसमें फिट किया, हो गया. वर्चुअल पर्सन असिस्टेंट. Every time the lady is not sitting there, but everything is being computerized, and you are going to get the thing. Whatever the question which you are asking, visualization, audio analytics are there, graph analytics are there, image analytics are there, Internet of the Things, robotics, soft robotics, so many things are there in that, which is going to make a difference in AI. Another thing, Elon Musk का नाम तो सुना ही होगा आपने, right? So this is the car which he is going to. This is again based on AI. Nothing. No accident, nothing like that. And even you cannot break the screen also. He himself tests the thing. So he is the power that's showing the power of AI. Then again, you are able to see this, the robots are there which is making the difference. Then AI में और देखिए आप Google Maps, this is a part of AI ना. Then satellite से directly Google Maps में आता है. It's a part of AI. Where is satellite? Where is A? And the person sitting there in Bangalore from HCL, they said that we got the picture of AI. Right? Google, Amazon, Alexa, Siri, they all are the part of the artificial intelligence. So how AI is impacting our lives? The smartphone. Security and surveillance. कैसे security surveillance आपका फेस डिटेक्ट करता है? उसको आप जूम करके देखो तो बता देता है क्या है क्या नहीं है. Social media platforms, navigation tool, e-commerce, banking, finance sector, smartphone, home, everything is based on artificial intelligence. आजकल तो AI से related जो आपकी meetings हो रही हैं, the complete meetings are happening where you can make a complete conference hall, you can have the gallery, you can have everything, which is again the thing which is a part of that. So अब आप देखो कि if you are solving a problem, you are going to definitely grow. So there are some companies which understood very well and they solved the problem. Reliance Jio, हर जगह उसने फ्री दिया था. आज से 4 साल पहले हर जगह फ्री बांट रहा था वो. 5 साल पहले फ्री बांट रहा था. आज रिलायंस जियो इज द मैक्सिमम अर्नर. एयरटेल को भी पीछे छोड़ दिया दोस्तों. वोडाफोन का कहीं नाम नहीं रहा उसके सामने. So it generates 1.68 करोड़ रुपीस ड्यूरिंग द कोविड-19 टाइम्स. कभी आपने सोचा नहीं होगा. 1,68 करोड़ उसने जो है जनरेट किया. Not only this, Zoom. Today we are talking on the Zoom. It has jumped $7.8 billion. He has jumped. It is basically from the China, but he has jumped like this. Skype जो हम लोग सब लोग बात करते थे Skype पे करो, Skype का नामो निशान नहीं रहा. 1mg, DocXR, NetMeds, they started feeding. 30% of the market share will be taken by these companies in 2022. This is the prediction of the entire pharmaceutical industry because people will be taking the medicine from them. And Amazon Prime, Netflix, Hotstar, आजकल देखिए आप मूवी भी Hotstar में ही रिलीज होती हैं, Netflix में रिलीज होती हैं, राइट, और लोग उसी में देखते हैं. So अभी the people now from yesterday or 2 days before only picture halls are open, but very less people are going there because they are scared, but everything is available there. So this is the different thing which is making opportunities in the various segment. Now we say it's a social distancing 100%, but not socially distancing. So maintain the social distancing, but socially distancing होने नहीं चाहिए. आप तो एक फिंगर पे और एक थंब पे अवेलेबल हैं. आपका माइंड, आपकी आईज,
एक फिंगर, एक थंब, दैट इज ऑल इज रिक्वायर्ड, एंड यू कैन मेक अ heaven of a difference in the entire world. That is the beauty, either from any level to every level. So with this, I should have humility, because देखो humility होना बहुत जरूरी है. Humility is a very very important thing. Stay connected with the people, because with every person having some of the great attitude, great learning things, they have the thing which we can learn from them. Learn to help others also. It is very very important. अगर आपको कुछ आता है तो आप उसको बताओ, because knowledge बढ़ने से ही बढ़ती है. मैं ये बोलता हूँ कि मेरे चैम्बर में अगर मेरे कोलीग आते हैं, मैं बोलता हूँ 3 आइडिया लेके आओ, 3 कोलीग 3 आइडिया लेके आए और हमने डिस्कस किया, तो 3 आइडिया उनके और 1 आइडिया मेरा, 4 आइडिया. तो हम जब बाहर इस चैम्बर से निकल के जाते हैं तो चारों आदमी 4 आइडिया लेके जाते हैं. तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ हेल्पिंग द अदर्स एंड शेयरिंग विद द अदर्स एंड हेल्प अदर्स टू लर्न. राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप दूसरे को हेल्प करोगे तो आपको भी लर्निंग बढ़ेगी, बिकॉज जो बंदे की हेल्प करे वही पढ़ करके आएगा, कुछ नई चीज बताएगा जिससे कि आपको जो है अच्छा लगेगा. सो अभी एक मजाक कर लेते हैं थोड़ा सा. इतनी पढ़ाई हो गई तो अब ये बताओ कि आपको कौन सा ऑप्शन पसंद है. सुस्त रहो, सोते रहो और रस्ट रहो. रस्ट मतलब कि जंक लग जाए. या आपको ये पसंद है चुस्त रहो, मस्त रहो और दुरुस्त रहो. प्रदीप साहब कौन सा ऑप्शन पसंद है बताइए सर. सेकंड वाला. ओह वाह. So that is the way of life. That is the way of life. Really way of life, that we have to be always on toes. On toes means not keep on going in the market, but on toes now it has been changed. That start learning, start exploring the thing. Must throw, be happy. Nothing is going to, world is not going to fall. Heaven is not going to fall on us. आप खुश रहेंगे तो आप दूसरे को भी खुश रखेंगे. आप अगर कॉन्स्टिपेटेड हैं, टेंशन में रहेंगे तो आप दूसरे को भी परेशान करेंगे. मैं तो सीधी बात, अगर मैं घर में जाता हूँ हंसते हुए जाता हूँ तो मेरी वाइफ भी खुश होकर मुझसे बात करती है, बच्चे भी खुश होकर बात करते हैं. अगर मैं घर में टेंशन में जा, पापा एकदम हमेशा साला टेंशन में रहते हैं, क्या है ये, बात करना है बेकार है, अभी आगे बात करेंगे वो करेंगे. मैं घर की बात एग्जाम्पल देता हूँ भैया, मैं अपनी बाहर की एग्जाम्पल नहीं देता. तो दिस बेस्ट थिंग विच इज देयर. तो खुश रहो, चुस्त रहो, मस्त रहो, दुरुस्त रहो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो. एंड इन द न्यू नॉर्मल, चेंज इज कॉलिंग. हमेशा हमारे हाथ में ये मोबाइल है, हम सब लोग मोबाइल पे देख रहे हैं या लैपटॉप पे देख रहे हैं. वो कॉल कर रहा है, हमें नैक कर रहा है, बट ये हमारे पर डिपेंड करता है. या तो उसको डिक्लाइन कर दो, तो वो याद करो वो अपना बंदा जो उस पे लेटा हुआ था, जिम में गया बट जाके वो लेट गया. या एक्सेप्ट करो तो मेक योर हेल्प. एंड अ ब्यूटीफुल थिंग विच हैज कम आई लाइक टू हाईलाइट. अचीवर्स नेवर एक्सपोज देमसेल्फ बट देयर अचीवमेंट एक्सपोज देम. आपको अपना बिगुल नहीं बजाना है, दुनिया आपका बिगुल बजाएगी. बिकॉज लोग आपके पास अट्रैक्ट होकर के आएंगे. इट इज लाइक ए बी हाइव, राइट. एक मधुमक्खी के यहाँ पे भरा रहता है, शहद भरा रहता है, वहां होकर के आएंगे आपके पास. और पहले जो था डू और डाई इज ओल्ड फैशन. अब तो भैया बोल दिया है कि डू इट बिफोर योर डाई इज द न्यू वन. करना है, जाने से पहले करके जाओ. पहले था डू और डाई, नहीं, अब डू और डाई पे काम नहीं चलता. वो हिटलरशिप नहीं होती है. अब तो कहते हैं भैया करो, जाने से पहले करके जाओ, नाम कमा के जाओ. दैट इज द थिंग इन द न्यू नॉर्मल विच इज देयर. अब आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं. देखो, फेलियर तो सबकी जिंदगी में आता है, फेलियर तो सबकी जिंदगी में है, लेकिन कुछ लोग फेलियर से सीखते हैं, राइट. ये जो है जेके रोलिंग 12 टाइम्स जो है फेलियर हुई थी वो, और उसके बाद उसकी जो है बुक पब्लिश हुई हैरी पॉटर, जिसने की नाम कमा दिया. 302 times legend Walt Disney World failed, but again he has made a Disneyland. आज भी लोग पेरिस में जाकर के लाइन लगा करके डिज्नी वर्ल्ड को जाकर के देख के आते हैं, राइट. 104 times अल्बर्ट आइंस्टीन, राइट, वो वहां जो है वो फेल हुए थे. वो नॉट एबल टू स्पीक अंटिल ही वाज डिड नॉट रीड द टिल 7, राइट. वो बात ही नहीं कर सकते थे 7 साल तक, 7 तक वो बात ही नहीं कर सकते थे. बट वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या थ्योरी दी है. एक पेंटिंग विंसेंट वैन गॉग की जो है बिकती नहीं थी, उसने एक फ्रेंड को बेची, और उसके बाद उसने जो है एक पेंटिंग की अभी कीमत है $142.7 मिलियन में बिकी. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस. सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर. एप्पल हम सबको मालूम है, स्टीव जॉब, स्टेप फादर, राइट. स्टेप फादर, एक छोटे से गैराज में उन्होंने काम करना शुरू किया. देन द सेकंड वन इज योर गूगल, हाउ दे स्टार्टेड, यू आर अवेयर अबाउट इट. अमेजॉन, ये अपना बेजोस साहब, दे यूज्ड टू सेल, क्या पहले वेटर थे, वेटर, आप उनको पढ़ो, राइट. यूज्ड टू क्लीन द टेबल्स, राइट.
जैसे कि हमारी श्रीमती ईरानी मैडम है, वो पहले मैकडोनल्ड्स में साफ करती थी, बट हाउ शी हैज ग्रोन सेम वे। ये बेजोस ने कहां से शुरू किया, पहली बुक जाके खुद डिलीवर करके आए थे। ये सचिन बंसल लोग ये पहली बुक जो है खुद डिलीवर करके आए थे फ्लिपकार्ट में, राइट। सो दिस इज द वे दे स्टार्टेड। हार्ले एक छोटे से गैराज से शुरू किया। डिज्नी, आई हैव जस्ट नॉट टोल्ड यू, दे स्टार्टेड विद अ स्मॉल हाउस। लंबोर्गिनी द गाय ही वाज वर्किंग फॉर ट्रैक्टर, राइट। तो फेरारी वालों ने उसके ऊपर कमेंट किया, तुम ट्रैक्टर बनाने वाले क्या जानो। उसने कहा वन डे आई विल मेक द फास्टेस्ट व्हीकल विच इज बेटर देन द फेरारी, एंड ही हैज मेड द कॉस्टलीस्ट एंड द फास्टेस्ट व्हीकल लंबोर्गिनी। सो दोस्तों ये दिमाग की सोच है, एक बार सोच लोगे तो थिंग्स कैन हैपन, एंड इट इज ऑलवेज देयर इन आवर माइंड ओनली। Nobody can put the things. It is every generator, every stimulator is there in our mind only. That is the challenge can be converted to the opportunities. मैं आपको एक छोटा सा 1.5 मिनट का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप उसको ध्यान से सुनिएगा और उसमें ये सुनिएगा कि विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट यू एज ए पर्सन, जो मैंने बोला है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने पर कॉन्फिडेंस रखोगे, फेथ रखोगे, तो थिंग्स आर गोइंग टू बिकम अ हेवन ऑफ ए डिफरेंस। Sir, volume if it can be increased. मैडम वॉल्यूम आपको उधर से इंक्रीज करना पड़ेगा, मेरा तो यहाँ पे फुल है। Which way your life shall go. And the question is whether you have a proper, a solid, and a sound blueprint. And I want to suggest some of the things that should be in your life's blueprint. Number one, in your life's blueprint should be a deep belief in your own dignity, your own worth, and your own somebodyness. Don't allow anybody to make you feel that you are nobody. Always feel that you count. Always feel that you have worth. And always feel that your life has ultimate significance. Secondly, in your life's blueprint, you must have as a basic principle the determination to achieve excellence in your various fields of endeavor. You're going to be deciding as the days and the years unfold what you will do in life, what your life's work will be. Once you discover what it will be, set out to do it and to do it well. Be a bush if you can't be a tree. If you can't be a highway, just be a trail. If you can't be the sun, be a star. For it isn't by signs that you win or you fail. Be the best of whatever you are. Finally, in your life's blueprint must be a commitment to the eternal principles of beauty, love, and justice. Well, like for none of us has been a Christmas down, we must keep moving. We must keep going. If you can't fly, run. If you can't run, walk. If you can't walk, crawl. But by all means, keep moving. So the three things which he said very clearly, the first is that first you have the confidence on yourself. Second thing is wherever you are, because आप लोग जब कॉलेज से निकलेंगे किसी भी लेवल पे, बीएससी करके, बीटेक करके, एमटेक करके, पीएचडी करके, you should be doing the excellence in your work, because excellence कहाँ से आएगा, वो पैशन से आएगा, and it is only you can generate, nobody can fill it up. आजकल हम जब देखते हैं कि there are so many childrens, कोई किसी ऑटो ड्राइवर का, काम करने वाले का बच्चा क्या मार्क्स लेकर के आता है, right? It is not that somebody is telling, it's a person who makes the difference. And the third thing which I said, which I correlate with our founder chairman, कि their life में हमेशा कॉमा होना चाहिए, right? He said, keep on doing, keep on doing. सन नहीं बनते तो स्टार बनो, right? That's what he said. But keep on doing. And if you are not able to walk, crawl, but don't stop yourself. Keep on going till the time the God has given this beautiful life to us. Don't never stop. And once you keep on going, the things will be in our hand. The destiny has been decided, but it depends upon you that how you create your destiny, right? How you make your destiny. कैसे आप उसको कार्व करते हो, ये सब आपके ऊपर है, आपके ही हाथ में है. बाकी सब लोग आपको गाइड करेंगे, लेकिन बनाने वाले आप ही हो, करने वाले आप ही हो.
तो टेक होम मैसेज इससे क्या हुआ, कोविड-19 जो कि अभी हम लोग चल रहे हैं हैज चेंज नथिंग बट ऑल्सो एवरीथिंग. Proactive creativity, innovation, collaboration, and right communication. This is the thing which has been given by COVID-19. Proactive creativity, मैंने आपको examples दिखाए, innovations हुआ, examples दिखाए, collaborations हुआ, example दिखाए, right communication हुआ, उसके भी मैंने आपको बताया. Then upskilling, reskilling, upgrading continuously is always a part of the life. जो छूट गया तो छूट गया, नया क्या आ रहा है, नया हमें उसको मिलना है, नए से हमें बनना है, नए से हमें जुड़ना है. नहीं तो क्या होगा, हम पीछे रह जाएंगे और बाकी लोग आगे चले जाएंगे. And be on guard on 24/7 because everything is there in your hand. Everything is there in your hand. Brain, hand, eyes. That's all. And finger and this thumb. That's all. 5 चीज का combination है दोस्तों. Hurdles are not hurdles. It's the way you see it. Right? आप hurdles को आप hurdles 1 मान के देखो. Hurdles के आगे देखो कि उसके बाद क्या है. Hurdles आपको एक pause देता है सोचने का. हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हर्डल्स आते हैं ना, ब्रेकर्स आते हैं कि नहीं आते हैं, सो डैट वो हमें पॉज देते हैं कि आप भाई नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, उसके बाद आप उसको क्रॉस करके तब आप गाड़ी तेज भगाओ. सो सेम वे लाइफ भी हमें पॉज देती है हर्डल्स दे करके, बट इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट इट विल मेक अ डिफरेंस एंड दैट चैलेंजेस विल कन्वर्टेड टू अपॉर्चुनिटीज. थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. जो मैंने आपको वो 2 चश्मे वाली पिक्चर दिखाई कि एक ब्यूटीफुल बंगला बन सकता है और एक बोला कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, तो दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स. Think of being human. हमेशा being human. God has created human being. But अगर आप being human रहोगे तो आप happiness spread करोगे. आपकी जो भी strength है वो दूसरे के पास जाएगी और दूसरा आपको accept करेगा, आपको embrace करेगा. Embrace means गले लगाएगा. Right? And people will love to have you in their society, in their community, that he is a person who always spread happiness, which is full of the knowledge, and other people will like to join you. So that's why I said that being human instead of human being. Increase the lead of imagination. सोचो आगे 5 साल के बाद कहाँ होगे, 10 साल के बाद कहाँ होगे, 15 साल के बाद कहाँ होगे. आप अपने को एक मैप करो. मैं यहाँ पे I am working with a pharma company with Cadila. Every month we achieve the target. Every week we achieve the target. Every fortnightly we achieve the target. मैं जितने भी अपने टीम मेंबर्स होते हैं या जिनसे मैं मिलता हूँ, हम बोलते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट मंथ ऑन मंथ अचीव करते हैं, वीकली अचीव करते हैं, फोर्टनाइटली अचीव करते हैं. तो क्या अपनी जिंदगी का टारगेट नहीं अचीव कर सकते? तो जब ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम जब टारगेट अचीव कर सकते हैं तो आपको अपनी जिंदगी का भी टारगेट बनाना पड़ेगा दोस्तों. 5 साल बाद आप कहां पे रहोगे, 10 साल बाद आप स्टार्ट विजुअलाइजिंग योरसेल्फ. वो लैडर में अपने को विजुअलाइज करो, फिर देखो कि आप अपने आप आपके पैर हमेशा ऊपर उठते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाओगे. ये मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है ना. और ये भी नहीं कि बट इट वाज ए केक वॉक. आई हैव आल्सो सीन लॉट ऑफ हर्डल्स. व्हाई आई एम सेइंग सो, आई स्टार्टेड माय करियर विद गोरखपुर. Gorakhpur is in UP. There people, they never used to speak in English. Always people used to talk in Hindi only, right? And our culture was only Hindi speaking, and that too, the local language was there. I said, no, let us change from that. Then from Gorakhpur, I came to Agra. Then I came to Lucknow. From there, I got an opportunity to come in Bangalore. I said, certainly I'll go to Bangalore to work in the entire South because I'll be able to communicate better. I'll be able to learn from the people. I'll be able to develop myself. तो वो कहीं ब्रेक रखा ही नहीं. वो हर्डल्स दूसरों के लिए हुआ, दूसरों को अपॉर्चुनिटी मिली. उनका कहाँ साउथ कहाँ जाएंगे, मद्रासी लोगों के पास, बिकॉज साउथ लोगों को उस टाइम मद्रासी लगता था. पीपल दे नेवर न्यूज़ टू देयर द 4 स्टेट्स आर देयर. बट दैट इज द वे दैट लाइफ चेंजेस. और वो जो लाइफ का टर्न हुआ वो आगे बढ़ाता गया. फिर लाइफ आपको आपके आगे लेके चलेगी. तो इंक्रीज द लीड ऑफ इमेजिनेशन. ब्रेन स्टॉर्मिंग इज द वे ऑफ लाइफ. आप जितने भी जो पढ़े जो जानकार लोग हैं उनसे आप बाया के बात करो. सपोज करो कि आप मार्केटिंग वाले हो, तो मार्केटिंग के जो प्रोफेसर्स हैं, सीनियर्स हैं, या आपके उनसे जाके बात करो कि साहब और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है. बट मार्केटिंग वाले को आप जाकर के किसी और हिस्ट्री वाले से बात करोगे तो हिस्ट्री वाले के लिए मार्केटिंग एक अननोन हो जाएगी. करेक्ट. सो स्टार्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग विद द राइट काइंड ऑफ पीपल एट द राइट टाइम एट द राइट वे. अनदर थिंग इज एड हार्ड वर्क. दोस्त, सबसे जो बेसिक लाइन होता है, हम लोग जैसे कहते हैं कि भाई कैडिला में या किसी फार्मा कंपनी में आने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए. तो आपको सक्सेस के लिए हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा. हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा. लेट मी टेल यू, दिस इज द बेसिक बेस लाइन. एक्वायरिंग नॉलेज, इंप्लीमेंटिंग इट, एंड हैव कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन
कि भाई कुछ भी हो, मैं गिरूंगा फिर उठूंगा, गिरूंगा उठूंगा. Perseverance, persistence, keep on going, positive and winning attitude. कोई बात नहीं, आदमी जो रेस में जाता है वो गिरता है. जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया था, आपने साइकिल चलाया, क्या आप गिरे नहीं? फिर साइकिल चलानी आई नहीं? क्या मोटरसाइकिल चलाना शुरू किया था, क्या गिरे नहीं? क्या मोटरसाइकिल चलानी आई नहीं? क्या बंद कर दिया? कार चलाना शुरू किया था, कहीं किसी ने ठोका नहीं, या हमने किसी को ठोका नहीं, बंद तो नहीं कर दिया ना. बट वी हैव डन. सो दैट इज देयर विनिंग एटीट्यूड रहेगा तो रहेगा. और लास्ट, helping others to build a strong peer group, which is very, very important. Please always have the mind that being a good human being, because अगर आप human being रहोगे तो हर आदमी आपकी मदद करेगा, which I have learned. Remember, my dear friends, everyone's story is different. प्रदीप जी मैं नहीं बन सकता, प्रदीप जी की अपने खुद के ट्रेड्स हैं. नम्रता मैडम मैं नहीं बन सकता, उनके खुद के ट्रेड्स हैं. बट यू शुड फोकस इज व्हाट यू कैन क्रिएट फॉर योरसेल्फ. आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, उस पर फोकस करो. आप अपने लिए क्या क्रिएट कर सकते हो. सपोज करो कि मैं मार्केटिंग वाला हूं, तो बोलो जी मार्केटिंग नहीं, मैं जो है साइंटिस्ट बन जाऊंगा, तो मैं तो अटर फेलियर हो जाऊंगा. या साइंटिस्ट बोले जी मैं मार्केटिंग करूंगा, हो सकता ना भी कर पाए. तो जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर कंसंट्रेट करो, एंड देन विद द फुल पैशन डू द एक्सीलेंस ऑन दैट. दैट इज द थिंग विच आई वांट टू टेल यू. एक अभी since you all have them, I'll just take 2 minutes of that time. कि scope for BSc और pharma और MSc और PhD. So opportunities of the pharma graduates are many. ये मैंने एक छोटी स्लाइड बनाई है कि जो फार्मा के ग्रेजुएट्स है, बिकॉज वी आर ए फार्मास्यूटिकल कंपनी. One second. This is the thing which you can see. एक अपॉर्चुनिटी फार्मा ग्रेजुएट, आप टीचिंग में जा सकते हो, फार्मा को विजिलेंस में, रिसर्च में, फार्मास्यूटिकल डाटा मैनेजमेंट में, हायर एजुकेशन साइंटिस्ट बन सकते हो. द पीपल हु आर डूइंग PhD, government jobs, pharmaceutical marketing, production, hospital pharmacy and clinical pharmacy. This you can attain it if you are a person of BSc, B Pharma, M Pharma, and even the PhD people. Teaching, which I told you very clearly. M Pharma pass out student can get an assistant professor job in pharmacy degree colleges. M Pharma and PhD student can get an associate professor job in pharma degree college. Then pharmacist, especially for B Pharma or M Pharma, they can become a good pharmacist. Now, lot many companies they require that, lot many hospitals they require the qualified people there. Quality assurance manager, B Pharma, M Pharma or PhD. In our Cadila also, there are so many PhD people are there, doctors are there, they are working there. Medical transcriptionists, because now it's completely a buzzword, it's only on digital. ये भी आप बन सकते हो. And एनालिटिकल केमिस्ट और क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, बी फार्मा एंड एम फार्मा, आप लोग आराम से ये बन सकते हो, बिकॉज बेसिकली भी रिक्वायर, बिकॉज यू हैव द नॉलेज, यू कैन मेक द थिंग्स हैपन. बीटेक स्टूडेंट बन सकते हैं और मेडिसिन विद द बायोकेमिस्ट्री वाले बन सकते हैं. इनॉर्मस स्कोप है दोस्तों, आपको अपनी लाइन चूज करनी है. क्लिनिकल रिसर्च, बी फार्मा, एम फार्मा, PhD, you can be a pharmacy, you can be a clinical research person, you can do lot of clinical research on that. हमने अभी सेप्सीवैक लॉन्च किया है, वर्ल्ड का फाइनेस्ट प्रोडक्ट विच इज गोइंग टू इंक्रीज इम्यून बूस्टर. सो उस पर क्लिनिकल रिसर्च हुई, जो हमारे डॉक्टरेट किए हुए डॉक्टर्स हैं, PhD किए हुए डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इस पर रिसर्च किया. दिस इज वन थिंग वी हैव गिवन टू द वर्ल्ड. सिमिलरली वी हैव गिवन मल्टीपल प्रोडक्ट्स फ्रॉम Cadila साइड टू द वर्ल्ड. सो इट हैज बीन डन बाय आवर PhD डॉक्टर्स इन आवर Cadila लैब ओनली. Sales and marketing में BSc, B Pharma, M Pharma, you can make your career, you can grow from any level. Base level से आप मेरे level पे आ सकते हो, marketing level पे जा सकते हो, sales level पे जा सकते हो, जहां भी आप जाना चाहते हैं उस हिसाब से आप आराम से आगे बढ़ सकते हो. Regulatory managers B Pharma और M Pharma के लिए, again regulatory managers in minimum qualification is B Pharma or M Pharma as per your competency level. So that also you can do. In many of the places you can make rules, standard, governance, regulations, so many things आप ये कर सकते हो. And government opportunities, आजकल तो आप देखो गवर्नमेंट में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज दे वांट अ जेनरिक ड्रग, दे आर पुटिंग द थिंग्स दैट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट चाहिए. तो ऑल नॉलेजेबल पीपल आर रिक्वायर्ड. ड्रग इंस्पेक्टर की कितनी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है. गवर्नमेंट एनालिटिकल लेबोरेटरीज में, बिकॉज दे आर टेस्टिंग, दे आर गिविंग द क्लियरेंस ओनली आफ्टर टेस्टिंग इन देयर लेबोरेटरीज. तो ऑफ कोर्स बी फार्मा, एम फार्मा, PhDs आर रिक्वायर्ड नाउ, बिकॉज दे वांट अ हायर क्वालिफिकेशन पीपल. फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में चाहिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट लेक्चर्स में चाहिए, मेडिकल कॉलेज में डिमॉन्स्ट्रेटर चाहिए. सो एंड देन आफ्टर ऑल M Pharma के बाद द स्टडीज इन इंडिया
ओवरऑल प्रोस्पेक्ट्स है फार्मास्यूटिक्स में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में, फार्मा मैनेजमेंट में, एमएससी, पीएचडी, मींस देयर आर इनॉर्मस स्कोप इज देयर एंड यू आर इन द राइट प्लेस, राइट हैंड, यू कैन मेक योर करियर वेरी वेल. ओनली थिंग इज यू हैव टू चूज कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस जगह को आपको अडॉप्ट करना है. Not only this, you can become an entrepreneur also, and you can make healthcare digitalization. आप अपनी खुद की कंपनी खोल सकते हो, खुद के फार्मास्यूटिकल मेडिसिन बना सकते हो, सैनिटाइजर्स बना सकते हो, हेल्थकेयर डिजिटलाइजेशन कर सकते हो, और आप टेलीमेडिसिन शुरू कर सकते हो. बहुत स्कोप है दोस्तों, बहुत ज्यादा स्कोप है. तो उसके पहले ये मैंने आपको बताया, तो ये मैं आपको बता सकता हूं कि there are lot many things are there which are there. There are enormous scope is there. मिलने वाले के लिए कहीं कोई जगह नहीं है. इतना स्कोप है, ये आपके पर डिपेंड करता है. लेकिन दोस्तों काम तो करना पड़ेगा, भागना तो पड़ेगा सबको मिलके, है ना, और पॉजिटिव एटीट्यूड में भागना पड़ेगा. बिफोर आई शुड क्लोज, माय 2 more slides are there जो आप इंजॉय करोगे, आपको अच्छा लगेगा. जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा. उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा. शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा. समझ गए, शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा. तो वो भूख से रिलेटेड था. हमारी भूख है, हमें आगे बढ़ना है, हार्डवर्क करना है, हमें आगे बढ़ना है, अपनी जिंदगी बनानी है. एवरी 5 years 10 years वी हैव टू हैव दैट थिंग, वी हैव टू पुट कि मैं 5 साल बाद कहाँ होऊंगा, राइट, वो करना है. बिकॉज आने वाले टाइम में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द चार्ल्स डार्विन थ्योरी के ही इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है. जो बेस्ट होगा, फिटेस्ट होगा, वो ही सर्वाइव करेगा. और हम कोई भी कम नहीं है किसी से. हम कहीं ना कहीं कुछ छोड़ देते हैं, इसलिए हम पीछे हो जाते हैं. अगर हम छोड़े नहीं तो हर बंदा हर्ष जैसा ही नंबर 1 होगा, जो मैडम ने बोला था. और मेरा तो मानना ये है कि हर आदमी में कैपेबिलिटी है, हर बच्चे में कैपेबिलिटी है. हर बच्चा कैन मेक द थिंग्स फ्रेंड्स, हर बच्चा कैन ग्रो द थिंग्स, एंड हर बच्चा कैन मेक अ हेवन ऑफ अ डिफरेंस. Everybody is capable. Only you have to choose your right capability, right instinct, right time, right place, right determination, and work hard to not to miss the things. There's a lot of opportunities are there दोस्तों, हर फील्ड में, in every field. कोई भी चीज उठाओगे तो अपॉर्चुनिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, which I told you in a nutshell. And with this, thank you so much for patiently listening, seeing my example, right, which I have learned actually from many of the junior level, many of the senior level, many of the peer group, and when multiple places, wherever I keep on going, कुछ ना कुछ तो सीखता ही रहता हूँ. बिकॉज सीखना एक जिंदगी है जो मैंने सोचा हुआ है, और जिसको सीख करके मैं आगे बढ़ा हूँ, और वो उसको मैं दूसरे को देता हूँ. बिकॉज इट वॉज वेरी क्लियर इन माई लाइफ दैट गोइंग बैक टू द सोसाइटी इज माई बेसिक मोटो. Keep learning and keep going back to the society. With this, my special thanks and gratitude to Dr. G.S. Yadav, Vice Chancellor sir, Namrata madam who has come here, Bharti madam who is also here, Vyas sir, our Dean sir who is attending this session, Sumit साहब जो कि बहुत ही पेशेंसली सुन रहे हैं, and of course Abhinandan ji who is my good friend also, and Pradeep ji who has looped me for this beautiful interaction with the entire beautiful group of Indrashil University associated to them inside, and some of the people who are listening from outside. Thank you so much. Thank you. Sir, thank you Amazing, so much for super, this sir. session. You can see the accolades which are popping up, dropping up in the chat box and Q&A box. All compliments, no queries, because they were so absorbed, engrossed. Pradeep sir is going to say something. I have a query, sir. हाँ जी. Yeah, okay, sure. I know little time we have exceeded because 12:30 generally finished. नहीं, आप टाइम एक्सेप्ट करो. पढ़ाई में आगे बढ़ने में अपने को नहीं है. We should be really, because it's a knowledge sharing and knowledge learning. Yes, जी, sir. जी. हम सबके पास है, आपके पास भी कुछ अच्छी चीज है, उसको भी शेयर कर सकते हैं. जी, तो जी. नॉलेज लर्निंग एंड नॉलेज गेनिंग में कभी टाइम नहीं आता है. श्योर श्योर सर. मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था एक्चुअली. बोलिए. चीज ये है कि सर जैसे हम लोग हर एक ये जो हमारे जो ऑडियंस है आज की तारीख में, खास तौर पे हम लोग तो शायद कहीं किसी लेवल पे थोड़ा बहुत पहुंचे हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या होती है सलाह की. सलाह मतलब
जो हमारी सबकी जिंदगी में एक शर्मा अंकल होते हैं या गुप्ता अंकल होते हैं या श्रीवास्तव अंकल होते हैं, सबकी लाइफ में होते हैं जो शायद बिन मांगी एडवाइस देते हैं। शायद उनका इंटेंशन सही होता होगा, लेकिन वो एडवाइस हमको मिलती है और हर जगह से मिलती है। जैसे सर अपने जो ओनर हैं या मोदी साहब हैं या रमन भाई पटेल जो उनके पार्टनर थे, उनको सलाह दी थी कि आपका कोई लिखेगा नहीं क्योंकि सब एमएनसीज का लिखने वाले हैं, आपका कोई डॉक्टर टच भी नहीं करेगा। धोनी को सलाह दी थी कि आप रेलवे में आप टीसी बन जाओ, आपसे कुछ होगा नहीं, मतलब ये आपके लिए बेस्ट सेटल लाइफ है। तो इस तरह की सलाहें उनको मिली। अगर उन्होंने शायद उस पर अमल किया होता तो कहानी कुछ और होती। शायद हम और आप इस जगह पे एक साथ नहीं बैठे होते या कहीं और काम कर रहे होते, अगर उन्होंने उस सलाह को मान लिया होता उनकी। तो सर उनका सामना कैसे किया जाए, आई थिंक ये सबके मन में रहता है। आपने मेरे दिल का क्वेश्चन छू लिया। कैसे छू लिया? जब मैं इंजीनियरिंग, देखो मैं 1982 की बात कर रहा हूँ, 38 इयर्स बिफोर। उस टाइम डॉक्टर एंड इंजीनियर्स दे आर सपोज्ड टू बी द मोस्ट रिस्पेक्टेड। एमबीए तो होता नहीं था, हमने तो नाम से ही सुना था उस टाइम। थर्ड नंबर पे लॉयर आते थे, तो लॉयर को बोलते हैं काला कोट काला कौआ, झूठ बोलता है, सॉरी टू से, है ना, विद दिस डोंट मिस्टेक, ठीक है। तो ये तीन होते थे, बाकी और कोई प्रोफेशन था नहीं। सीए, चार्टेड अकाउंटेंट अभी बहुत नाम हो गया है। उस टाइम कहते बीकॉम, अरे यार इसको थर्ड क्लास आया इसका तो इसलिए बीकॉम में जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट 1982 वाला। तो जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, एडमिशन हुआ, तो मेरे फादर मदर वॉज वेरी हैप्पी, अरे मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा, 4 साल 5 साल बाद निकलेगा है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज पूरा एक ग्रुप था वो। लेकिन मुझे ये मेडिकल प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता था। मैंने बताया मैं चांस से नहीं आया, मैं चॉइस करके आया। तो मेरे जितने भी जो मतलब पापा के जो दोस्त थे डॉक्टर फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जो मेडिकल लैब से अच्छी तरह टाई वाई पहन के अच्छी इंग्लिश बोलते थे, बात करते थे, ब्यूटीफुल लिटरेचर्स होते थे, और डॉक्टर उनको बहुत रिस्पेक्ट करता था, ठीक है। तो उनसे बात करता था, तो वो जो है मुझे लगा कि यार ये प्रोफेशन बड़ा अच्छा है। देखो जब डॉक्टर खड़ा हो जाता है इतना पढ़ा लिखा, उस टाइम तो एमबीबीएस की बहुत बड़ी बात होती थी, वहाँ तो डीएम थे ही नहीं उस टाइम, तो एमडी बहुत कम हुआ करते थे। तो क्या है कि यार ये बड़ा अच्छा प्रोफेशन है। तो मैं बात कर रहा, अंकल ये कैसा प्रोफेशन है अंकल, मतलब आई नेवर यूज्ड टू आस्क माय पेरेंट्स एंड ऑल, बेटा ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत लोग नॉलेजेबल होते हैं, हम इनसे सीख लेते हैं, ये हमें बताते हैं, तो ये बहुत पढ़ के आते हैं। तो डेट हैज गॉन इन माई माइंड। तो जब मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ा और कैडिला में इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैंने जो है मेरे सब जितने भी जैसे जो अंकल लोग हैं, शुक्ला जी और ये सब इस टाइप, शर्मा जी टाइप, तो क्या ये क्या है प्रोफेशन, झोला लेके घूमना, बैग लेके घूमना मीन्स झोला लेके घूमना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा झोला लेके घूम लूंगा, फिर बाद में टाई लगा के भी घूमूंगा, है ना। तो आई हैव नॉट टेकन दैट सलाह, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन यही लोगों को है कि आप लोग सही आदमी से सही सलाह लो, वो सही रहेगा। अगर आप हलवाई से जाकर के बोलो कि भाई दीवार बनानी है, तो हलवाई आपको दीवार बनाने की सलाह नहीं दे सकता है। तो अगर जिस प्रोफेशन में जो आपके जानकार लोग हैं, आप उनसे ही सलाह लो, वो भी जानकार जो कि आगे बढ़ते आए हैं, ठीक है, तो वो आपको राइट वे में गाइड करेंगे। अब सपोज करो माई बोथ द चिल्ड्रन दे आर इन फ्रॉम द आईटी बैकग्राउंड, सो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट आईटी, राइट। सो आई कैन नॉट, दे कैन नॉट कम टू मी एंड टेक अबाउट द आईटी थिंग्स, राइट। मैं कहा भाई मैं तो लेमैन हूं, मैं तुमसे ही सीख लेता हूं, करेक्ट। तो दिस इज द वे, राइट पर्सन से राइट सलाह लेंगे तो आपको सही बताए। डोंट गो विद चाचा एंड अंकल एंड ऑल, प्लीज, दिस इज माय सिंसियर रिक्वेस्ट। आगे बढ़ना है तो आप उन्हीं से जो आगे बढ़ता है जिंदगी में उस पर्टिकुलर प्रोफेशन, ये मेरा मानना है, ये मेरा कहना है। थैंक यू सो मच सर, सही सलाह। इसीलिए सर को आज इनवाइट किया गया है कि टर्निंग पॉइंट में सच में टर्न आ रहे हैं और ट्विस्ट भी आ रहे हैं, और वो लीड कर रहे हैं बहुत एक अच्छे जगह को जो आपने चश्मा दिखाया। सो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा डायरेक्शन मिल रहा है। और स्टेगनेंसी के बारे में आपने सर बताया, तो स्टेगनेंसी सच्ची बात है, स्टेगनेंसी ब्रीड्स टेलनेस। जो स्टेगनेंट कहीं भी पानी रहता है वो तो वो स्टेल हो स्प्रिंग जाता करता है। है, स्प्रिंग कीप करता है। मूविंग जो है, दैट वाज एक्चुअली बहुत अच्छा लगा मुझे। और खासकर आपने जब कहा कि चुस्त रहो, मस्त रहो और दुरुस्त रहो, सो ये एक बहुत अच्छा टेक अवे मेरे लिए था। एंड आई नाउ इनवाइट भारती मैडम एंड व्यासर वन आफ्टर द अदर फॉर देयर रिफ्लेक्शन आल्सो। Am I audible? Yes, Yes, madam, ma'am. very much. Yes, sir. Really, it was a wonderful, motivating lecture, not only for the students, but even for us. And with really very apt take-home messages that you gave, applicable to both the students as well as us. And how you explained, how you told the students the Darwin's theory, that is survival of the fittest. They need to work really very, very hard.
So, and the other thing which I liked about many of the leaders of Kedila was that one of the example is Pradeep sir, and the second is you. Okay, how your basic degrees are different, and how you have entered into a completely different field with an ample success. So that is also a take-home messages for the students. Okay, they every time they do not need to take up their career into the basic degrees which they have studied. They should always do what is of interest to them. Yeah, wonderful take-home messages. And one which I would like to add about Steve Jobs was that okay, they were the first to give us smartphones, but he and his wife had decided okay, we would never be giving our kids smartphones until they reach the age of 16. And perhaps their perception also would have changed if he would have been alive in the present time. COVID-19. True, madam. Absolutely right, madam. आपने Yeah, wonderful lecture, sir. Wonderful भारती lecture. मैडम बहुत अच्छी बात बोली. मैं हाँ. एक चीज बताऊं, मेरा तो ये मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड था. इंजीनियरिंग में तो मैथमेटिक्स होता है ना, बायोलॉजी नहीं होती है. हाँ. तो आपने जो क्वेश्चन प्रदीप जी बोला वो इमीडिएटली भी मेरे दिमाग में आया. तो टू गो इन द फार्मास्यूटिकल सेलिंग, आई यूज्ड टू गो टू दीज डॉक्टर्स. मैं बोलता साहब मुझे पढ़ाओ, आप मुझे पढ़ाएंगे तो मेरे समझ में आएगा. तो वो मुझे पढ़ाते भी थे, तो आई बिकेम देयर गुड स्टूडेंट ऑल्सो. ऐसे मैंने 10 डॉक्टर सेलेक्ट किए हुए थे, राइट. और वो मेरी प्रिस्क्रिप्शन भी लिखते थे. तो जो अगर आपके स्टूडेंट की प्रिस्क्रिप्शन में लिखेगा तो सेल्स भी मेरी हो जाती थी और मेरी पढ़ाई भी हो जाती थी. तो आई वाज हिटिंग द टू थिंग्स टुगेदर, knowledge gaining and business gaining. Yeah. Sir, one question which I wanted to ask you, because I am not from corporate, I am from academics. I just wanted to know, okay, what is vertical head? Madam, vertical head is that we are taking care for multiple divisions. तो पहले हम लोग क्या होता है कि एक डिविजन्स के ही हेड होते हैं, फिर 3, 4, 5 डिवीजन को कलेक्ट करके एक उसके ऊपर वर्टिकल होता है. तो ही इज इन चार्ज फॉर ऑल द डिविजन्स. उसके अंडर में वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, जनरल मैनेजर्स होते हैं, ऐसे करके. तो वी आर एज अ वर्टिकल हेड. So we directly report to the president and to the CMD sir. Oh. Yeah. स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत अच्छा ये इन्फॉर्मेशन हो गया मैडम. गुड क्वेश्चन कि वर्टिकल हेड क्या होता है, तो लोगों को, स्टूडेंट्स को एक एम मिलेगा कि ये पोजीशंस भी है. ओवर टू व्यास सर फॉर हिज रिफ्लेक्शंस. थैंक यू नम्रता मैडम. राजपूत सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा. बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल स्पीच दिया और आई टोटली एग्री विथ हिज ऑल द आइडियाज. आई एंडोर्स ऑल द आइडियाज सर, because I also believe the same line. In the same line I am also doing and working and believing in the same line. कि मैं एक चीज मानता हूँ जो आपने बोला कि खुद को प्रूव करो, नंबर 1. एंड नंबर 2, आप आगे बढ़ना है. दूसरे की लाइन के पीछे, लाइन काटने के पीछे जितनी एफर्ट लगाते हो ना, अपनी लाइन बड़ी करने के पीछे लगा लो उतनी एफर्ट. यू विल बी इन द फ्रंट. करेक्ट. ठीक है ना. दूसरे के पीछे मत भागो. दूसरा क्या करता है करने दो, जो कर रहा है करने दो उसको. आप अपना सोचो आप क्या कर सकते हो. और जो आपने बोला ना कि बीइंग ह्यूमन, और हर एक बंदा खुद एक यूनिक बंदा है. करेक्ट. हर एक बंदा, जैसे भगवान ने सबको बनाया है, लेकिन हर एक अपने आप में एक यूनिक है. करेक्ट. अपने आप में एक डिग्निफाइड पर्सनालिटी है. तो उसको प्रूव करो और उसको साथ में लेके चलो. अपने आप को कम मत करो. दूसरा कुछ भी बोले, कैसा भी कमेंट है. देखिए एक चीज मैं मानता हूँ कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो अपने आसपास ऐसे एटलीस्ट 2 से 3 लोगों को रखो जो आपका लिए क्रिटिक्स देते रहे. करेक्ट. आपको आईना दिखा दे रहे, आपके लिए खराब बोलता रहे. क्योंकि अगर कोई ऑपोजिशन पार्टी को अगर अच्छा होना है ना, रूलिंग पार्टी को भी अच्छा काम करना है ना, तो डेली उसके ऑपोजिशन का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए. कि यहाँ पे रोड बनाना छूट गया भाई, तो उसको पता चल जाएगा. वो बताएगा कि यहाँ छूट गया भाई, यहाँ जाके काम करो. तो कहीं से अगर if something is oversighted, then people will tell you that you work in this direction. Knowingly, unknowingly, they are helping us. So they are building us in, increasing our life. Towards So, excellence. thank you very much. they are helping us towards excellence, है ना सर? Yes, exactly. सर एक्चुअली हिंदी भाषा में कहा भी गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए. हाँ, कबीर सही है दास सर. सही सही है. बोला था. पढ़े लिखे नहीं थे तब भी उन्होंने इतनी. सही है, सही है सर. It's time Thank now you. to hear from our students who is going to propose vote of thanks also, because it is customary and courtesy also to say vote of thanks, and which one of our students, Devi Panchal, again from 5th semester, School of Engineering, will be saying. So मैडम over एक चीज to बोलूं आपको. Yes, sir, please. नम्रता मैडम, जी. आपने कभी मैडम किरण बेदी को बोलते सुना है?
ध्यान नहीं दिया आपकी सर। मैंने wife- उनके साथ फोटो खिंचवाई है, वो हमारे कैंपस पे एक बार आई थी, मैं जब कर्णावती में थी तो हम लोग साथ में ही थे। आप कभी सुनिएगा, आप बहुत ज्यादा हमसे रिजेंबल करती हैं बात। सर आप बोल रहे थे अपनी खुद की पहचान, तो मैं खुद की पहचान करी। रिसेम्बलेंस इज एक्चुअली, ये तो बायोलॉजी में है टोन है ना, तो जी। अगर कोई सुने नहीं, सामने देखे कि मैडम नम्रता है, तो ऐसा लगेगा या तो किरण बेदी मैडम है या तो मैडम नम्रता है। एक्सरसाइज थैंक यू सो मच सर। मैं आप उनके साथ वाला फोटो आपको दिखाऊंगी, आप बिल्कुल देखेंगे डिफरेंस बहुत है। तो होगा, हर वो अभी बोला ना व्यास सामने, एवरी पर्सन इज डिफरेंट। Thank you so much, sir, for these compliments. यस मैम। Over to Devi. Devi, please. Am I audible, ma'am? Yes, Devi. So, okay, ma'am. Hello? Devi, a bit louder today, huh? Yes, ma'am. Hello, good afternoon, everyone. I am Devi Panchal, studying in computer engineering from Indrashil University. Firstly, I would like to thank my faculty member for giving me this opportunity to deliver vote of thanks to our today's speaker. On behalf of the Indrashil University and on my own behalf, I would like to thank Sir P.K. Rajput for this motivative speech on challenges and opportunities in marketing and the way forward. We are overwhelmed by listening to your kind words and experience you shared with us. And of course, this would be a step forward to our success path. It was worth listening to you. Once again, we are really grateful for your insightful perspective. Thank you, sir. Thank you, Devi. She has been very shy when she came in the first semester. And over a period of time, she has gained confidence. And now she is able to speak forward. So it's a way forward for them and for us also, sir. I consider this as a 24-carat pure presentation, motivating and taking a way forward. So, sir, ये जो खासकर आपने प्रेजेंटेशन जो दिया था, तो उसमें जो विजुअल्स थे, जो उसमें ग्राफ्स थे और जो स्टैटिस्टिक्स थे, आई थिंक हमारे स्टूडेंट्स को वो भी एक लर्निंग हुई कि प्रेजेंटेशन देना है तो कैसे देना है. So that was also, I mean, I think that was a takeaway for our students. वो जब ऐसे देखेंगे, उनको एक्सपोजर मिलेगा from the true blue leaders of Kerala. तो बहुत ही हमारे लिए एक बहुत टर्निंग पॉइंट है ही है. सर्टनली हमारे सीएमडी सर का जो ये विजन था और उन्होंने कंसेप्चुलाइज किया ये आइडिया को, सो इट इज गोइंग टू टेक अस फॉरवर्ड. थैंक यू सो मच सर. Once again, thank you, ma'am. Thank you for your nice word, and thanks to all the seniors who are here, who are taking care for Indrashil University, and thanks to all the students and all the people who are viewing it. Again, dust raho, chust raho, or मस्त रहो. keep learning, and make this world a very happier world, and make it excellent. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Shall I close it, ma'am? Yes, sir.